Very good evening, everyone. Welcome from Sneak Rehab Foundation. I'm Harshali Kharche from Nagpur, the founder and one of the director of Sneak Rehab Foundation. We are basically from Nagpur. Our Sneak Rehab Foundation, it is a special needs integration center. Our basic motto of SNIC is to provide a conducive environment for children with special needs so as to facilitate their development, education, and help them to develop their potential to the fullest and enhance their independence towards the well-adapted individual in society. For that, we are coming up with some projects like recreational center, social rehabilitation, community support center, homeschooling, vocational daycare, and finally the residential hub. We are trying to get this center under one roof so as to facilitate all the facilities under one place. Here, our motto is to educate the parent and develop their perspective towards the right kind of interventions and treatments. Today, we are here for a very important topic of this webinar series is government schemes. Most of the parents doesn't know about these schemes and available for our special needs kids. For that, we have invited Mr. Abhijit Raut for giving us information. He is a rehabilitation consultant, president of Mission Institute for Training, Research and Action, that is Mitra, Nagpur. He is a district election node officer, Disability Wing, Nagpur. He is a project coordinator, District Disability Rehabilitation Center, that is DDRC, Nagpur. Also, the founder and director of Time Teaching Institute for Multiple Education and Research at Nagpur. State coordinator in Yashwantrao Chauhan Pratishthan in Mumbai. I welcome Mr. Abhijit Raut for our today's topic. Welcome, sir. Over to you. Good evening, everyone. Thank you so much. Hello. Yes, sir. Please carry on, sir. Okay, thank you. Good evening, everyone. Again, all participation, parents and related sibling and other also. Myself, Abhijit Raut, madam also introduced to me. I'm working in last 15 years in rehab field and only not in part of the rehab, in other than to social activity also. But madam introduced to me कि I'm district coordinator and other also nodal officer. But my personal interest in especially for the disability and tribal area also. This second one is my good core area. You can measure is a disability is a major task last 13 years. And specifically working of the DDRC. DDRC is a nodal agency for the Central Ministry, Disability Affairs under by the Social Justice Department. And parallelly, I'll coordinator also Samagra Shiksha Abhiyan is one of the HRD ministry under by the Run project. Only focus on education, and education is a part of inclusive education. That's a very important part, inclusive education. And madam also meet to in this project also in Samagra Shiksha and DDRC also last 5 years before. And as per the child and other issue related, I'll meet them. So that time I'll talk to madam, and last 3 years before I'll just one suggestion to madam ki you can start them ki one of the forum as a parents you can start them. So madam already SNIC Foundation is a good started for the last 1 years. I'm happy to all parents ki this types of forum is other than various of services and various of schemes to introduce the all parents. So just I started in like one template also in PPT. Things the worst thing about the disability is that is the see before the person is seen. इसमें एक पिक्चर है, एक आग का चित्र दिखाया मैंने, आप देख सकते हैं. मैं थोड़ा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्सेशन करूंगा, तो शायद मुझे लगता है किसी को कंफर्टेबल रहेगा, या थोड़ा किसी को मराठी भी बहुत से लोग हैं, लेकिन मैडम ने जिस तरह बोला है तो हिंदी इज अ मेजर पार्ट. तो मेरा ऑलवेज फोकस रहता है कि हम एक बच्चे के पेरेंट्स हैं या सोसाइटी कब हमारे बच्चे के ऊपर हमारा एटीट्यूड
ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे को सोसाइटी किस तरह से देखेगी। तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ पेरेंट्स को, हमारा एटीट्यूड चेंज करो, हमारे पेरेंट्स के ऊपर बच्चों को देखने का नजरिया हमें चेंज करना पड़ेगा। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर XYZ जो भी कुछ एबिलिटी या डिसेबिलिटी में हम बोलते हैं कि नहीं है, तो पहले तो मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बच्चे के अंदर 1 to 10 की रेंज में हम कोशिश करेंगे, तो शायद मुझे लगता है हमारे बच्चे के अंदर शायद एक पर्टिकुलर एरिया छोड़ के, जो हम पहले जिसको हम ऑटिज्म बोलते थे, अभी उसको ASD बोलते हैं। शायद बहुत से लोगों को ऑटिज्म और ASD का डिफरेंस शायद पता होगा ही, लेकिन पहले 2015 तक के हम इसको ऑटिज्म करके बोला करते थे, अभी उसको ASD करके बोला गया रहता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें स्पेक्ट्रम नाम में ही सब कुछ है। स्पेक्ट्रम इज वन ऑफ द, आपने सोचा होगा स्पेक्ट्रम वन ऑफ द एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ये था, 2-5 साल पहले हम स्पेक्ट्रम नाम बहुत सुने थे, लेकिन स्पेक्ट्रम में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं, इसमें 5 पैरामीटर है अलग अलग, जो हमारे बच्चों को एक ASD करके अम्ब्रेला में हम देखते हैं। लेकिन ऑटिज्म से ASD कैसे हुआ है, क्या हुआ है और कैसे आगे जाना है, वो थोड़ा एक टेक्निकली और मेडिकल बेस कुछ ये वर्ड्स है, शायद मैं आगे उसके ऊपर जाऊंगा ही, आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत से बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा ऑटिज्म है, कोई पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा ASD है। तो मैं भी पूछता हूँ कि ASD और ऑटिज्म में क्या है, तो बहुत से लोगों को ये भी शायद कभी कभी पता नहीं रहता है कि हम हमारे बच्चे के डिसऑर्डर के बारे में भी कहीं कहीं कंफ्यूज है। तो शायद मुझे लगता है ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हमारे बच्चों को हम इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को इंट्रोड्यूस करूंगा तो मिस्टर हान या मिस्टर, मेरी भी जो बच्ची अनुश्री है, तो मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि इसमें ऑटिज्म या स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म है। तो शायद मैं बहुत बार सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम हमारे बच्चों का इंट्रोडक्शन भी डिसेबिलिटी बेस्ड ना करें, उसके पोटेंशियलिटी पे और उसको जो आपने अच्छा नाम XYZ जो भी दिया है उस बेस पे आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे शायद हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, और काफी पेरेंट्स इस तरह पॉजिटिवली लेते भी है और लेना चाहिए। तो नेक्स्ट, तो मेरे तरफ जो सब्जेक्ट था गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट सर्विसेज फॉर द चिल्ड्रन विद ASD, मैंने ASD इसलिए किया, लेटेस्ट वर्ड ASD है, ऑटिज्म एक सोफार हो गया। तो अभी ऑटिज्म क्या था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये कहाँ से आया है हमारे देश के अंदर, किसके अंदर कोई लीगल पार्ट इसमें हमें किस तरह मिला है। शायद आपको बहुत से पेरेंट्स को नेशनल ट्रस्ट एक्ट पता होगा, शायद मुझे पता नहीं कितने लोगों को, लेकिन 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया था, लेकिन उसमें पहले मेंटल इलनेस की मेंटल रिटार्डेशन एक शब्द था, उसके अंदर भी CP है, मल्टीपल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म करके की एक शब्द रहा करता था। लेकिन ये 1999 में आया था नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत, आपको ये सब ऑलरेडी बहुत से लोग जानते हैं कि 95 एक्ट था, बाद में 2016 अभी आए हैं, लेकिन उसके बाद में अमेंडमेंट हुआ है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसमें हमने देखा होगा कि सेक्शन 2 में अंडर में स्पेसिफिक डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज की गई है, ASD जिसको हम बोलते हैं। लेकिन नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बाद में एक लगभग 15-16 साल के बाद में ब्रॉडली सब लोगों को पिक्चर क्लियर हुआ है कि ऑटिज्म भी इस तरह से कोई चीज है या डिसऑर्डर है। इसके पहले कोई भी बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन अदर डिसेबिलिटी में एक लेबलिंग होता था, या जो भी कुछ पैरामीटर थे उस बारे में सोचा जाता था। तो ये इसलिए पता होना चाहिए कि हम हमारे बच्चों के अधिकार कब से और गवर्नमेंट सिस्टम में कब कब से चालू है। बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं नेशनल ट्रस्ट एक्ट का रोल क्या है, हमें कहाँ जाना है और हमें क्या करना है। उसके बाद में नेक्स्ट, तो मिनिस्ट्री, ये सब कुछ किसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बहुत से लोग HRD मिनिस्ट्री को कंसर्न करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को कंसर्न करते हैं, लेकिन इसके बाद आप ध्यान में रखिए ये पूरा कोरम सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट पता ही होगा सबको, उसके अंडर में एक छोटा सब डिपार्टमेंट अभी गवर्नमेंट ने चालू किया है 2016 के बाद। एज पर द एक्ट हर स्टेट में अपना अपना डिसेबिलिटी अफेयर्स ऑफिस होना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। सेंट्रल मिनिस्ट्री ने ये 2016 में ही स्टार्ट कर दिया। इसके लिए सेपरेट सेक्रेटरी रहते हैं, पॉलिसी मेकर रहते हैं, और मिनिस्ट्री लेवल पे नेशनल लेवल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे इसका डिपार्टमेंट भी अलग अलग काम कर रहा है। 25 अप्रैल 2016 के बाद इम्प्लीमेंट हुआ है। अब ये इम्प्लीमेंट जब हुआ है तो इसके बाद में 25 अप्रैल 2016 को आपको बहुत से लोगों को, शायद मैं नागपुर में काम करता हूँ मुझे पता है, या शायद मैम भी उसमें से वन ऑफ द बेनिफिशियरी है, हमने
2016 की असेसमेंट गाइडलाइन इवैल्यूएशन को लेके ही हमने ऑटिज्म प्रोड्यूस ऑफ सर्टिफिकेशन के गाइडलाइन को ही लेके सर्टिफिकेशन चालू किए थे। एक्ट 2016 में आया है, लेकिन असेसमेंट गाइडलाइन जो आई थी वो 2016 अप्रैल में ही आ चुकी थी, 15 के करीब लगभग। तो मैं ये बहुत से लोगों को पता नहीं, शायद ऑटिज्म का असेसमेंट गाइडलाइन पहले आया है और 2016 एक्ट जो है राइट ऑफ पर्सन में डिसेबिलिटी 2016 ये बाद में आया है। उसके में कुछ कुछ कंफ्यूजन आपका भी हो रहा होगा, मैं आगे की इसमें आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ये चीजें आपको मालूम होना इसलिए जरूरी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले शायद आपको आरबीएस के नाम मालूम होगा, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको हम आरबीएस के बोलते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण योजना जो थी उसको 9 जुलाई 2014 में स्टार्ट किया। उसमें भी काफी फ्रेम गाइडलाइन इवैल्यूएशन असेसमेंट की ऑटिज्म के बारे में की गई थी। शायद बहुत ही ब्रॉडली नहीं थी, लेकिन बहुत से लोगों को अवेयरनेस के रीजन या इवन इनिशियल लेवल पर प्रोजेक्ट होने की वजह से पब्लिक ओरिएंटेड ये प्रोग्राम नहीं हो पाया। पब्लिक ओरिएंटेड हो पाया लेकिन फोकस ओरिएंटेड ऑटिज्म पे नहीं हो पाया, तो वो बहुत सा पब्लिकली नहीं गया। तो ये भी चीजें, हमारा फाउंडेशन क्या है, हमारी बच्चों के राइट्स कब से शुरू है, कहाँ पे क्या क्या है, इसलिए अवेयरनेस होना जरूरी है कि शायद आप कोई फोरम में काम करते हैं या आपको हमारे राइट्स के बारे में बात करना है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो एक जनरली ब्रॉडली हम बोलते हैं कि बहुत से पेरेंट्स मुझे पूछते हैं, जनरली मैं जो आज आपको पीपीटी में कुछ चीजें क्लियर करूंगा तो उसमें ना ये एफएक्यूज है जो मैंने बहुत से पेरेंट्स 1-to-1 इंटरेक्ट करता हूँ, तो शायद उसमें एसडी के भी पेरेंट्स है, अदर देन भी पेरेंट्स है। तो उसमें मुझे काफी कॉमन एफएक्यूज आते हैं जिसमें इनकम टैक्स बेनिफिट का है, कुछ और अदर देन टू है। तो इनकम टैक्स बेनिफिट का है 2005 में 29 जून को ही गवर्नमेंट ने एक टैक्सेबल के लिए आपको एक रूल्स के लिए बनाया, लेकिन उसमें एक चीज ऑथराइज करके दी थी। ये शायद सर्कुलर आपके पास है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं नहीं तो इसके बाद मैं मैडम को ये पीपीटी भी सेंड करूँ या आई विल प्लान देम कि मैं इसका एक फोल्डर कैसे आपको दे पाऊँ, शायद ये आपको काम में आए और इसका आप स्टडी कर पाए और शायद डीपली आप जाएंगे तो शायद और कुछ चीजें आपको मिल सकेंगी। इनकम टैक्स में भी कुछ आपको एग्जाम्पशन है जो आपके बच्चे के राइट्स है। मैं हर बार राइट से शब्द इसलिए यूज करूंगा, ये अगेन मैं यही पे बोलता हूँ कि ये कोई चैरिटी नहीं है, आप जो भी कुछ लेंगे ये आपके बच्चों का राइट्स है, ये हमें दिया गया राइट्स है। इसलिए कोई भी चीज को आप सिंपैथी या सोशल एंगल से टच मत कीजिए, वो आपके राइट्स बेस रहेंगे। अभी मेन पेरेंट्स का एफएक्यू सेकंड आता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन। शायद आपको बहुत से पेरेंट्स को अदर देन महाराष्ट्र के बहुत से लोग इसमें होंगे, तो शायद मुझे पता नहीं, महाराष्ट्र में अभी ऑटिज्म का एएसडी का सर्टिफिकेशन हमने स्टार्ट किया था। हमें खुशी है कि नागपुर इज वन ऑफ द फर्स्ट सिटी इन महाराष्ट्र, मे बी इज सेंटर ऑफ इंडिया कि आई स्टार्टेड डिसेबिलिटी इशू सर्टिफिकेट लास्ट ईयर 2019 एंड 18 दिसंबर मंथ ऑफ एंड। तो हमने ये सबसे पहले चालू किया था। गाइडलाइन 2015 में आई थी, लेकिन लेट होते होते लोगों को पता ही नहीं था कि टेक्निकली इसको किस तरह किया जाए। तो बहुत से पेरेंट पूछते हैं कि हमें यूडीआईडी का सर्टिफिकेट चाहिए। ये यूडीआईडी क्या है, इसका कोरम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। अभी हमारा जो एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, आप उसको थोड़ा सा केयरफुली या समझेंगे तो उसमें ना सेंटर ऑफ सर्कल एक चीज है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आपको कोई भी चीज का बेनिफिट चाहिए तो आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अब वो सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलता है, बहुत से पेरेंट्स को ये भी पता नहीं कि यूडीआईडी कहाँ है, कौन सी लिंक है, उसका वेब पेज क्या है, उस पर रजिस्ट्रेशन किस तरह करना चाहिए। आई सिंपली द वन ट्री प्लान ऑल्सो कि आपको ये समझ में आना चाहिए। इसमें देखिए सबसे पहला अप्लाई द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन यूडीआईडी कार्ड। आप पोर्टल पे कोई भी गूगल पे जाएंगे तो यू कैन .solemban आप डालेंगे, सोलम्बन नाम डालना पड़ेगा। बहुत से लोग यूडीआईडी भी डालते तो आ जाता है, लेकिन solemban.gov.in डालेंगे तो शायद आपको एक वेब पेज ओपन होगा, उसके अंदर एक प्रोसेस चार्ट है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन है, ये प्रोसेस है, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट है सेकंड फेज में। उसके बाद में आपको रेफर टू स्पेशलिस्ट किया जाता है। एक कंप्लीट चार्ट है जिसमें आपको सर्टिफिकेशन, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी 90% स्कीम है ओनली फॉर द एजुकेशन छोड़ के, जिसमें भी इंक्लूजन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सर्टिफिकेशन का कहीं सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन कुछ एजुकेशन में बेनिफिट्स लेना है, राइटर है, रीडर है, सपोर्ट सिस्टम है, या कुछ ब्रेकआउट में कुछ सपोर्टिव एग्जाम्पशन ऑफ द पेपर्स के लिए लेना है, तो दैट टाइम यू कैन ऑथराइज द सर्टिफिकेट। आपको मेडिकल अथॉरिटी का चाहिए, उसको हम यूडीआईडी बोलते हैं, उसको गवर्नमेंट पोर्टल में सोलम्बन पोर्टल बोलते हैं। तो एक सिंपल ट्री है,
ये शायद एक दिन में कंप्लीट प्रोसेस हो सकता है। और आपके माहिती के लिए बता दूं, जो गवर्नमेंट की असेसमेंट गाइडलाइन है इतनी प्रॉपर है, जिस तरह वो पूरा फोरम कंप्लीट करते, शायद मुझे लगता है 1 या 2 सीटिंग में आपका सर्टिफिकेशन इशू हो जाना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है लोकल अथॉरिटी, लोकल मेडिकल बोर्ड एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिपेंड करता है सबका किस तरह का इन्वॉल्वमेंट ये प्रोसेस में है। तो इसलिए मैंने सर्टिफिकेशन पे आपको ये बताया, ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है पेरेंट्स हमें एक जनरली पूछते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। आप एक माइंडसेट बना लीजिए, कोई भी चीज को एक हम गवर्नमेंट की कोई भी योजना या कोई भी पॉलिसी या कोई भी चीज को बेनिफिट बनना चाहते हैं, तो बेसिक चीजें हमारे बच्चों का आधार कार्ड। हमारे आधार कार्ड बच्चों का होता ही है, 2 फोटो कोई भी एक जनरली सभी जगह लगते हैं। अदर देन टू हमारा लोकल जो भी एड्रेस प्रूफ रहेगा वो लगेगा। 3-4 चीजें कॉमन है। शायद आप कहीं पे भी या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है अदर देन प्राइवेट में भी कहीं पे जाना चाहते हैं, तो ये 3-4 फोल्डर आप ना कैरी करना शुरू कर दीजिए। बहुत बार पेरेंट्स का एक चीज मुझे बहुत ध्यान में आया, मैं लैकुना बोलो एरर बोलो जो भी चीज है, इसको सेंटेंसली मत लीजिएगा, कि ये चीज पेरेंट्स वन सीटिंग में कंप्लीट हो सकती है। आप कहीं पे भी जाएंगे तो शायद अपने बच्चों के 4 फोटो 5 फोटो अदर देन टू आधार कार्ड की फोटो कॉपी, अदर देन टू आपका लोकल जो भी एड्रेस प्रूफ रहेगा और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन। आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो अदर देन टू जो भी डॉक्यूमेंट्स उसका बोनाफाइड है स्कूल का है, इसकी आप एक बंच बना के रख दीजिए, या स्कैनिंग करके आपके मोबाइल में भी रह सकता है एक फोल्डर बना के, क्योंकि अभी 90% स्कीम या जो भी कुछ बोलो गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन है supportive या other than to education level, all are the web based, all are the portal based, क्योंकि अभी 90% काम सिस्टम में पेपरलेस हो चुका है कई कई जगह है। तो दैट्स वाई कि हमें एक्सेसिबल होना पड़ेगा। एक ही काम को 10-10 बार करने की आदत मत रखिए, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजों को हर चीज को समझ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सिंपल स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया, जो यूडीआईडी जनरेट होती है। नेक्स्ट अब आते हैं हमारी जो सेक्यूरिटी बॉडीज है, हम कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, हमारे स्कीम्स क्या हैं। बहुत से पेरेंट्स को कुछ गूगल पे सर्च करना है या इंडियन पॉलिसीज में हमें कुछ हमारे बेनिफिट्स फाइंड आउट करना है, तो आप ना एक ये चीज लिख दीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसको दिव्यांगजन भी एक नाम दिया गया है, इन ब्रैकेट दिव्यांगजन, लेकिन ब्रॉडली हमें पर्सन विद डिसेबिलिटी एक बड़ा एक ब्रॉडली शब्द है जो एक्ट बेस्ड भी है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शायद आपके गूगल में या आपके वेब में इसको स्टार मार्क करके रख दीजिए, यानी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो शायद आपको फर्स्ट थिंग आपके थाली में सर्व होना चाहिए, या किसी को पूछने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि अभी गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी नई डिजाइन की है और उसका क्या क्या नया अमेंडमेंट आया। शायद आप डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये भी गूगल पे डाल देंगे तो शायद अभिजीत की जरूरत, राहुल की जरूरत शायद आपको 50% कम हो सकती है, प्रैक्टिकल बेस छोड़ के। कुछ चीजें हमें भी आपको अपडेट होना पड़ेगा। तब मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि आप सिस्टम पे कितना डिपेंडेंट रहेंगे। आफ्टर ऑल सिस्टम भी एक कोई मैन पावर या कोई मैनिपुलेटेड या कोई मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं। हम भी रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं, हम भी इनकैश करते हैं और आप तक देते हैं। तो मैं चाहता हूँ बहुत से पेरेंट्स को ही मैं इतना सस्टेन करूँ कि शायद वो मुझे 4 सवाल ना करें। तो ये जो एक डिपार्टमेंट है, उसके बाद में बहुत से पेरेंट्स का भी एक सवाल रहता है कि हमारे राइट्स के बारे में हमें कहाँ बताना पड़ेगा, या शायद इनकम टैक्स के बेनिफिट, इंश्योरेंस के है, पेंशन्स के है, कुछ पॉलिसी मेकिंग्स के है, एग्जाम्पशन के हैं। शायद मुझे बहुत से पेरेंट्स का एक सवाल रहता है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे मेरे राइट्स के बारे में कहाँ भेजना है तो ये मुझे पता नहीं है। तो मैं आपको सेकंड चीज बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कुछ अच्छी चीजें आएंगी तो शायद ऊपर का सबसे पहला नाम बताया मैंने, सेकंड नाम आप लिख लीजिए चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आपको मालूम होगा एक जैसी जुडिशियरी बॉडी रहती है, हमें कोई भी काम करना है कि हम लीगल एडवाइस लेते हैं। आपके माहिती के लिए जो चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी है, ये देश का एक संवैधानिक पद है, इनडायरेक्टली वन ऑफ द एक जज के लेवल का उनको राइट्स हैं। जो भी वो वहां से राइट्स आपको गवर्नमेंट को एक ये करेंगे, गाइडेंस देंगे, तो शायद वो इनडायरेक्टली एक वो लीगल बेस रहता है। तो आपको शायद कुछ भी आपके बच्चे के बारे में रहे या आपके खुद के राइट्स के बारे में रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, तो आप चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी की तरफ अपने चीजों को आगे ये कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है और एक फोरम है, शायद बहुत से पेरेंट्स इस चीज को एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है। थर्ड वन, जिस तरह मैं एक रिहैब प्रोफेशनल करके आपके साथ मैं बात करूं, मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है,
मैं बहुत से पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि जिस तरह आपने पीडब्ल्यूडी एक्ट, हम जिस तरह बोलते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 है, आपको आरसीआई भी मालूम होना चाहिए। आरसीआई क्या है? आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। जिस तरह मैं एक प्रोफेशनल, जैसे बहुत से लोग मेडिकल लाइन से रहते हैं, उनका एमसीआई रहता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अभी उसका नाम चेंज होकर अलग सा हुआ है। उस तरह आरसीआई है। आरसीआई क्या, राइट रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें मेरे तरीके लोगों को डिप्लोमा, डिग्री, जो भी हम पीएचडी या जो भी कुछ करते हैं, रजिस्टर्ड आरसीआई, मुझे एक नंबर आता है। बी विदाउट आरसीआई रजिस्ट्रेशन यू कांट एनी अदर एक्टिविटी फॉर द रिलेटेड टू डिसेबिलिटी फील्ड। ये हमारा एक कायदे से दिया हुआ अधिकार है। तो प्लीज आप आरसीआई को भी पढ़ना चाहिए, आरसीआई की लिंक पे भी जाना चाहिए। शायद मुझे लगता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू पेरेंट्स ऑल्सो। एनी पेरेंट्स इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग लाइन ना, या एनी अदर शॉर्ट टर्म कोर्सेस ऑल्सो इन अंडरस्टैंडिंग, या you can parallel, you can attend them, so you can go for the RCI registration, RCI link also, Rehabilitation Council of India। इसमें पूरे देश में लगभग 450 प्रोग्राम चलते हैं, जो 6, 7, 8 नेशनल इंस्टीट्यूट है देश में, अलग अलग रीजन में। तो यू कैन पार्टिसिपेशन देम ऑफ प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, 3 मंथ्स है, करस्पॉन्डेंट भी है या फुल टाइम भी है। मैं इसलिए पेरेंट्स को बोलता हूँ कि हर चीज आप सिस्टम पे मत डिपेंड रहिए। आप भी एक टीचर है, क्योंकि 18 आवर्स यू कैन, आप अपने बच्चों के साथ रहते हो, तो शायद आपसे बेटर कोई दूसरा नहीं समझ सकता आपके बच्चों को। तो कुछ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल चीजें, पॉलिसी विंग चीजें आपको आरसीआई की वेबसाइट पे भी मिल सकती है। ये चीजें को बहुत आपको समझना पड़ेगा। लास्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं कभी भी एसडी बच्चों को या ऑटिज्म बच्चों से, पेरेंट्स से कभी नेशनल ट्रस्ट के बारे में नेशनल ट्रस्ट रिलेटेड कोई भी चीज आपको यानी रिलेटेड टू दिस वन, कि आपको नेशनल ट्रस्ट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा फोरम है। शायद आप 90%, मैं अभी भी कह सकता हूँ 90% पीपल आर तो नोन अबाउट नेशनल ट्रस्ट है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन प्लीज आप ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट को बहुत ही माइन्यूटली आप पढ़िए, माइक्रो लेवल पे जाइए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल जो लिटरेसी बीइंग है या नॉन भी है, या जिनको लैंग्वेज बैरियर्स भी है, तो मे बी इसके हिंदी और इंग्लिश के भी वर्जन वेबसाइट पे है। तो यू कैन प्लान दे कि यू कैन फोकस ऑन नेशनल ट्रस्ट एक्ट ऑल्सो। ये एक बहुत बड़ा फोरम है जिसमें आपको आपके राइट्स के बारे में, आपके बच्चों के बारे में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने आपको कुछ राइट्स दिए हैं। नेक्स्ट, हाँ, मेजर थिंग इज कि सेंटर पब्लिक सेक्टर में जो एंटरप्राइजेस है, जिसमें हम बोलते हैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र जो है, this is one of the ALIMCO organization. Second one is an NHFDC. NHFDC is one of the forum of the related to scholarship, any other base of the loan also, any other supportive skill related policy also related to higher education scholarship. And second one is the ALIMCO, Artificial Limb Manufacturing Corporation of India, जिसको हम short में ALIMCO बोलते हैं। ALIMCO is one of the major high-tech या regular material supplying agency for the undertaking by the ministry. This is based on the main headquarters of Kanpur, and you can see them ki wheelchair and crutches and other than appliances is a major 80% subsidy of the ALIMCO organization. So just people are go to the site, तो हमें पता चलना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। देखो, हर चीज हमारे लिए नहीं बनी है। शायद मैं ये सोचूं कि मैं एक डिसेबिलिटी फील्ड में काम करता हूँ, तो मैं भी एक कोरम के लिए लिमिटेड रह सकता हूँ। आई ऑलवेज इन ब्रॉडली कि मैं सोचता हूँ कि नहीं, कोई ना कोई चीज किसी के लिए काम में जरूरी है। तो शायद आज भी मैं 90% ऑफ द जितना मैं आई क्लियर देम कि मैं आपसे बोलूंगा, तो शायद इसमें आपको एक ब्रॉडली कुछ चीजें आज नहीं, शायद आफ्टर 5 years मे बी आपको इसके पहले 2 years या करंट सिचुएशन पे आपको ये चीज अवेलेबल हो सकती है या होनी चाहिए या आपको जरूरत रह सकती है। इसलिए मैं आपको ये चीजों का एक गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। ALIMCO इज वन ऑफ द गुड ऑर्गेनाइजेशन, आप जरूर ये वेबसाइट पे जाइएगा। सेकंड वन में आपको जो अभी बताया नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, आप जरूर, आई रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स, यू कैन गो टू द वेबसाइट and read them very carefully of the rules and regulation and other schemes also. This is totally scholarship based of portal.
any other loan, SHG group also, self-help group also created to the parents and child also, maybe the support of financially also. 3-4 people are the came in last week in my child is go for the higher education, ASD child after the graduation and engineering started. But that time is a support for the government is 6 lakhs rupees in support in higher education. Is a refund non-refundable. So please go to the this website also and read. क्योंकि ना मैं अभी आपको कुछ चीजें इमीडिएटली एक ये नेशनल हैंडीकैप स्कॉलरशिप के बारे में भी शायद अभी आपको बताना चाहूंगा तो शायद मुझे 1 घंटा कम गिरेगा। इसके अंदर 6 अलग अलग योजनाएं हैं जो शायद आपके बच्चे के एजुकेशन को, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, 90% of the ASD family, ASD child is not apply them this all policies. Reason nobody कि मुझे पता ही नहीं इसमें कैसा करना पड़ता है, इसमें अप्लाई कब करना है, कब इसकी डेट निकल जाती है, क्या होना चाहिए, ये चीजें देखो। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए स्कीम बना रहा है, लेकिन आप कितना अलर्ट है, आप कितना अवेयर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इनकैशमेंट कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि ये चीजें आपके ऊपर भी डिपेंड रहेगी, ना कि गवर्नमेंट या सिस्टम आपको ये चीज के लिए सपोर्ट करेगी, अवेयरनेस करेगी, लेकिन इनकैशमेंट वो तालाब से कितनी मछली निकालना है ना, ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं। मैं जरूर बता सकता हूँ यहाँ बहुत सारी मछलियां है, लेकिन मे बी शायद मुझे क्या लगता है कि ये चीजें आपको बहुत सी चीजें समझना पड़ेगा। तो आई ब्रॉडली क्लियर कि आपके लिए जितने एक्ट्स है ना, ये चीजों को समझिए पहले। इस चीज को समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयर होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी को कोई लीगल एडवाइजर की तरह काम करे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हम जिस तरह अलग अलग फाइनेंशियली चीजें समझ लेते हैं ना, हमारे प्रोटेक्टिव एंगल से लाइफ में हम जब पैरामीटर में जीते हैं तो हमें पता रहता है कौन से बैंक में क्या एफडी है, कितना होम लोन है, कितना कार लोन है, लाभ है। उसी तरह हमारे बच्चों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, उसके कौन से राइट बेस है, कौन से पॉलिसी में कितना है, लिटिल बिट आप जितना इंटरेस्ट इसमें डालेंगे, शायद मुझे लगता है ये अलग अलग 6 पैरामीटर पे राइट्स है आपके, जो मैंने दे रहा हूँ। मैं भी आज आपसे जो भी बात कर रहा हूँ, शायद आई विल ओनली बेस ऑफ द एक्ट प्लीज। तो दोज आर कंप्लीट, एक आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। तो ये अलग अलग 9 जो हमने आपको एक्ट बताया, इसको भी आप बाद में शांति से पढ़िए। आप एक सिंपल सेंटेंस गूगल पे डालेंगे जो मैंने अभी दिखाया, तो शायद आपको ये पढ़ सकते हैं। उसमें भी ऑटिज्म ASD का शब्द डालेंगे तो शायद वो भी आपको दिखना, यानी दिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं जाएगी। परिवर्तन ये क्या है, यानी देखिए आपको मैंने पहले बताया कि एक राइट अवेयरनेस कैंपेनिंग होना चाहिए, जो चैरिटी मॉडल का पहले जो हमारा था, हम जो जिस तरह से पहले काम करते थे, आई ऑलवेज बी पीपल आर कमिंग फैमिली, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अभी ना हम 1980 की बात करें या 70 की, तो दैट टाइम पीपल आर कमिंग, तो हम चैरिटी बेस्ड जीते थे। दैट टाइम हमारा उस तरह का सोच था, एक सोशल हमारा उस तरह का एक बैक हिस्ट्री है। उसके बाद में हम ना अर्ली डिक्टेशन पे गए, हमारी चीजें कुछ कुछ समझ में आ गई कि नहीं ये चीजें होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए ध्यान में आया कि एक स्पेशल एजुकेशन भी कोरम होना चाहिए। फिर अर्ली डिक्टेशन के एक इंक्लूजन पैरामीटर पे भी हम काम करने लग गए, जिसमें स्पेशल टीचर का रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। बाद में पता चला है कि नहीं, ये बच्चों के लिए स्टार्टेड वन शेल्टर हाउस आल्सो, दिस ओपन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी है। तो शेल्टर हाउस भी एक अच्छा कोरम है, शायद आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अभी गवर्नमेंट इस पे बहुत अच्छा काम कर ली। 2 चीजों पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा, अर्ली इंटरवेंशन और दूसरा हमारा शेल्टर। कुछ बच्चे ये प्रोसेस में 0 to 6 एज के पैरामीटर में है, शायद कुछ बीच में इंक्लूजन पैरामीटर पे काम करे, जिनके बच्चे 6 to 18 ईयर्स के पैरामीटर में या 16 में भी हो सकते हैं, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के दायरे में अभी काम कर रहे हैं। आफ्टर 16 मेजर पीपल आर कमिंग इन टू मीट मी। तो अभी बच्चा हो गया, 10वीं हो गया, सर आगे क्या करना है, 10th इज अ पास आउट, 12th में क्या करना है, तो आई स्टार्टेड देम कि यू कैन गो फॉर द शेल्टर वर्कशॉप, यू कैन गो फॉर द वोकेशनल, यू गो फॉर द प्री वोकेशनल आल्सो। So these policies and this skill based program also in government by created them, I'll clear them next half an hours। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और सबसे मेन है ये सब चीजों में पेरेंट्स पैसिव पार्टिसिपेशन। आज जिस तरह से स्निक फाउंडेशन काम कर रहा है, दिस पेरेंट्स पैसिव पार्टिसिपेशन, मैं अगेन बताऊंगा, पैसिव आपको पेरेंट्स को एक्टिव होना पड़ेगा। कोई भी चीज आपके पास आएगी खुद होके चल के, ये शायद ये 21 सेंचुरी में शायद मुश्किल है, शायद आप अलग इमेजिनेशन में होंगे, सिंपैथी बेस पे कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ आपका पार्टिसिपेशन जितना पॉजिटिव पैसिव रहेगा, उतना ही आप सब चीजों को इनकैश कर पाएंगे। अगेन वही मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट, तो
अभी सेरेब्रल पाल्सी को हमें समझना पड़ेगा। सॉरी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट में अगेन आई स्टार्टेड, मैं फोकस भी पहले किया था कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, एएसडी ऑटिज्म के गाइडलाइन है, लेकिन आप ऑलरेडी 1990 के नेशनल ट्रस्ट एक्ट में ही आप इतने बेनिफिट्स है, शायद 90% पीपल, 95% पीपल ये गवर्नमेंट की स्कीम को कितना इनकैश करते मुझे पता नहीं। इसके लिए एक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एवरी डिस्ट्रिक्ट इन होल कंट्री इज वन ऑफ द एलएलसी, लोकल लेवल कमिटी आल्सो undertaking by the under observation by the district collector. This is a district collector of the chairman of the LLC. आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जा सकते हैं और आप पूछ सकते हैं हमारे नागपुर या जो भी XYZ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की LLC के XYZ LLC कौन है। Nagpur, I'll working in Nagpur. There is a Svikar and Sankalpa is a two organization, is affiliated by the National Trust Act. This only parents is organized them. LLC के अंदर एक चीज अच्छी है कि इसमें पेरेंट्स रहते हैं, कुछ हमारे सरी के रिसोर्सेज भी उसके अंदर एज वन ऑफ द मेंबर रहते हैं। और ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट का एक सबसे बड़ा रोल है कि ये आपके बच्चों के रिलेटेड अर्ली इंटरवेंशन तो ही, अर्ली डिक्टेशन भी है, और आफ्टर ऑल आपके बच्चे के असेसमेंट के बाद आपके बच्चों को क्या क्या योजनाएं करना है, एजुकेशन रिलेटेड है, ट्रेनिंग रिलेटेड है, रिहैबिलिटेशन रिलेटेड है। तो शायद मेरी ऑल पेरेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, NHFDC के वेबसाइट पे जाइए जो स्कॉलरशिप के। सेकंड वन इज अ नेशनल ट्रस्ट स्कीम, आप जरूर पढ़िए, इसमें लगभग 7 से 8 योजना इतनी अच्छी है। शायद बीइंग LLC, बीइंग एज अ पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे, बहुत से पेरेंट्स, आज मॉर्निंग में मेरी 1-2 पेरेंट्स से बात हुई, मैडम से भी आई विल इंटरेक्ट देम, तो मेजर पीपल आर द ASD child is a OT and PT, and especially OT related to therapeutical angle service is a very important part for the ASD child, sensory part. So that time is the people are the afraid of in related to financial support. मेरी शायद आपका सवाल का जवाब ये स्कीम में है, ऑलरेडी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट दे रही। आपको पता नहीं होगा कि आपके बच्चों को पर मंथ 10,000 तक के आपके बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्सपेंसेस लेने के लिए तैयार है, रिलेटेड टू LLC, रिलेटेड टू थ्रू LLC। या एक आप 10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, आपका LLC फॉर्म होता है या जो भी LLC है उसके अंदर आप अप्लाई करते हैं, शायद 20 बच्चों के लिए एवरी मंथ आपको 1.5-2 लाख का एक कंप्रूसिव पैकेज मिल सकता है, जो आप होल ईयर वो बच्चों को प्रॉपर OT अपॉइंट करके आप अपने बच्चों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दिस इज सिंगल अम्ब्रेला सिस्टम। तो इसमें अलग अलग स्कीम्स है, आपको समझना, ये मैं आपको 10 मिनट या 15 मिनट में नहीं बता पाऊंगा। तो बहुत से पेरेंट्स का स्पेशली ASD में यही होता है कि हमारे बच्चों को मे बी कि इतना कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो शायद मुझे लगता है कि एक कंपोनेंट के बारे में आपको समझना पड़ेगा, नॉट इन कि हमें हमारे बच्चों को बस एक एजुकेशन ही है। OT इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, रिहैब इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, एजुकेशन इज अ, क्योंकि हर चीज स्कीम बनी है या गवर्नमेंट जितना भी स्कीम बना रही है वो फोकस है बच्चा इंक्लूसिव कैसे होगा, इंक्लूजन पैरामीटर में कब आएगा, क्योंकि बच्चों को सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी में आगे बढ़ना है, सोसाइटी में ही काम करना है। तो ये सब स्कीम का एक ही सेंट्रल फोकस है, इंक्लूजन। आप ये फिक्स कर लीजिए कि स्कीम इज अ वन ऑफ द टेम्पररी पार्ट। हम हमारे बच्चों को, हमें एक डेस्टिनी से दूसरे डेस्टिनी पहुंचना है, हम यहाँ से बैठे तो वहां बैठना है, तो दिस अ पार्ट ऑफ स्कीम। इस तरह का स्कीम होता है कि वो दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म या हमें पूरा लाइफ लॉन्ग वो चीज रिहैब के लिए सपोर्ट करेगी। दिस अ टेम्पररी 3-4 years या 5 years, मे बी इज अ 10 years ऑल्सो, स्कॉलरशिप रिलेटेड। तो ये चीजों का आपको बहुत समझ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी लोकल लेवल कमिटी क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एज पर द सेक्शन 30 नेशनल ट्रस्ट एक्ट आप पढ़ेंगे तो ब्रॉडली शैल बी द, आप लोकल लेवल कमिटी पे आप जितने भी स्पेसिफाइड फॉर द टाइम टू टाइम आपको काम करने पड़ेगा। उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट एक्सपर्ट भी रहेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज वन ऑफ द चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अदर देन डिसेबिलिटी एक्सपर्ट रहते हैं, और आपके शरीफ फैमिली के लोग भी, पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। 90% फैमिली मेंबर्स ऑफ पेरेंट्स इज अ LLC कमिटी मेंबर। तो ये चीज आपको मैं चाहता हूँ एज अ स्निक फाउंडेशन की तरफ से, आई विल प्लान देम कि मैं मैडम से आके बात करूंगा। यू कैन स्टार्ट LLC ऑल्सो इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट इन ऑटिज्म चाइल्ड ओनली। तो उसके अंदर आपको शायद बहुत सी अच्छी एक्टिविटी कर सकेंगे जो आप अभी करना चाहते हैं और आगे भी कर लेंगे। तो LLC के अंदर ये अंडर सेक्शन 14 के अंदर है, जिसमें सब चीजें क्लियर है।
आप नेशनल ट्रस्ट एक्ट में जाएंगे तो सेक्शन 13 एंड 14 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिलेटेड टू योर चाइल्ड में, यानी उसमें ऑटिज्म भी है, सेरेब्रल पाल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन भी, जिसको अभी मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी न्यू एक सेंटेंस एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है, मल्टीपल डिसेबिलिटी वही है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। शायद आपको ये चीज एक अलग सा फोरम के बाद शायद आप और बच्चों को, आपके पेरेंट्स को आप राइट्स बेस्ड एक्टिविटी दे सकते हैं। यू कैन स्टार्ट आल्सो एलएलसी रिलेटेड एक्टिविटी स्टार्ट देम, कि आप कर सकते हैं और आपने करना चाहिए। नेक्स्ट, तो लीगल गाइडेंशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लीगल गाइडेंशिप के बारे में बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कब देना चाहिए, क्या देना चाहिए। शायद मैं एक ग्रुप में हूँ आपके, बहुत से पेरेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि आफ्टर 18 ईयर्स माय चाइल्ड इज अ लीगल, किसको देना है, क्या करना है। तो एवरी आंसर इन एलएलसी, या आपको नेशनल ट्रस्ट एक्ट जिसने पढ़ लिया शायद उसको ये सब चीजों का एलएलसी रहे, लीगल गाइडेंशिप रहे, अदर देन स्कीम्स रहे। आपके माहिती के लिए बता दूं, गवर्नमेंट एवरी ईयर्स नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत आपके लिए सेपरेटली 100 करोड़ का बजट भी अलोकेट करती है। लास्ट 2 ईयर्स बिफोर इज 100 करोड़ ऑलमोस्ट, जो पेरेंट्स से रिलेटेड एक्टिविटी बेस्ड चलता है। तो गवर्नमेंट इसके लिए अलग से फंडिंग दे रही है, आरपीडब्ल्यूडी के लिए तो अलग से दे रही है, अलग अलग स्कीम्स के लिए दे रही है, लेकिन नेशनल ट्रस्ट एक्ट फोरम के लिए अलग सा एक बजट भी है जो पेरेंट्स से एक्टिविटी के थ्रू आगे जाता है। तो शायद लीगल गाइडेंशिप के लिए भी आपको एलएलसी काफी सपोर्ट करती है। एलएलसी का ही रोल है कि हमारे बच्चों को लीगल गाइडेंशिप में क्या क्या करना चाहिए, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने किस तरह, मैजिस्ट्रेट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसको हम मैजिस्ट्रेट बोलते हैं हमारे लीगल लैंग्वेज में। तो हम मैजिस्ट्रेट के अंदर कैसा रखेंगे, किसको देना चाहिए, एफएक्यूज है। शायद मेजर पेरेंट्स इस पे लीगल गाइडेंशिप के ऊपर काफी कंफ्यूजन भी रहते हैं, शायद प्रॉपर आपको शायद इसकी माहिती इसके थ्रू मिल सकती है, नहीं तो मैं भी आपको इसके एफएक्यूज भेज दूंगा ओनली रिलेटेड टू लीगल गाइडेंशिप, तो शायद उसमें से आपको जवाब मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अभी एक आपने शायद 90% पीपल आर द अवेयर देम की निरामय योजना, निरामय इज वन ऑफ द मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द योर चाइल्ड रिलेटेड टू नेशनल ट्रस्ट एक्ट। अगेन देखिए यहाँ पे भी नेशनल ट्रस्ट एक्ट है। नेशनल ट्रस्ट इज अ सेपरेट स्टैट्यूटरी बॉडी, यू कैन क्रिएट वेरियस ऑफ पॉलिसी, वेरियस ऑफ टेलर मेड पॉलिसी, नीड बेस ऑफ द योर चाइल्ड as per the current scenario. The national trust is one of the mediclaim policy. People 90% people की हमारे बच्चों को मेडिक्लेम नहीं मिलता है, हमारे बच्चों को XYZ जो भी चीजें बेनिफिट नहीं मिलते। This is a 1 lakh rupees मेडिक्लेम policy, but not I'm not satisfied this related to policy. Reason major hurdles also. उसमें कुछ चीजें हैं जो शायद मुझे पसंद है इंडिविजुअल लेवल पे, शायद इसमें काफी इसमें टेलर मेड होने की जरूरत है या अमेंडमेंट की जरूरत है। शायद ये मैं कहीं कम गिर सकता हूँ, तो शायद ये पेरेंट्स के राइट्स है। आप इसको डेफिनेटली आपके कोरम के माध्यम से आप इसको अच्छे से एक अम्ब्रेला के थ्रू एक अच्छा बुके बना के पेरेंट बच्चों को राइट्स दे सकते हैं। इसकी बहुत जरूरत है। निरामय आप ले सकते हैं अभी भी, इसका 250 रुपीज मिनिमम कॉस्ट, but is a income is a criteria, means a 550 rupees is the APL and BPL also 250 rupees and other than to जो भी है 700 rupees तक maximum लगता है 1 lakh mediclaim. This all people, but ये mediclaim policy का एक ही problem है, this is not a cashless policy. So that's why major people initial level पे पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो इसका इनकैशमेंट नहीं मिलता है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब तक के कैशलेस नहीं हो पाएगा तो शायद इसका वॉल्यूम ऑफ पीपल बेनिफिशियरी कम हो, मैक्सिमम नहीं हो सकते। तो यू कैन ट्राई देम टू 6 फाउंडेशन के थ्रू आप ये भी आगे लेके जा सकते हैं, या आप इसके अवेयरनेस भी कर सकते हैं, या एवरी ईयर्स यू कैन प्लान देम कि हमारे बच्चों का एक मेडिक्लेम पॉलिसी जो भी करंट लेवल पे निराम है, you can encourage them. शायद 10-15,000 20,000 साल में जो भी आप डेंटल अदर देन टू थेरेप्यूटिकल मेडिसिन मे बी एवरी कंपोनेंट है, शायद उसमें आप इसको 20-25,000 रुपए इसके यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसका टीपीए थोड़ा सब्जेक्ट भी है जो हैदराबाद हेडक्वार्टर बेस है। इसके जो अलग अलग जनरली मेडिक्लेम में जितना मुझे पता है, जो आईआरडी का इंपॉर्टेंट रोल होता है टीपीए एंड जो भी चीजें है, शायद उतना एक स्ट्रक्चर बेस नहीं है, शायद इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन पॉलिसी होना अच्छी बात है, जो भी सपोर्ट मिलेगा 20-25,000 रुपए का, तो शायद आपको काम में आ सकता है। और ये आपके माहिती के लिए एवरीथिंग इज ऑनलाइन, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसके लिए कोई अलग से जाने की जरूरत नहीं है। आप 500-550 रुपए भर दीजिए, जो भी एज पर क्राइटेरिया ऑफ इनकम आप इसको इनकैश कर सकते हैं। आपको एक घर पे ही कार्ड आ जाएगा, वन ऑफ द स्मार्ट कार्ड, और आपका एक नंबर रहेगा, आप शायद मेडिक्लेम में उसको बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट,
अभी मैंने जैसा बताया कि कुछ चीजें अभी बहुत से पेरेंट्स के बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं, या जितने मेरे साथ जुड़े थे बच्चे, या मैं भी काम करता हूँ, तो मेरे पास तीनों कैटेगरी के रेंज आती है, 0 to 6, 6 to 14, मे बी अबो एंड 18 एंड अबो। तो मेजर पीपल आर सेइंग कि नहीं चलो अभी बच्चा पढ़ गया, स्कूल में गया, अभी हमारा बच्चा जो भी छोटा है। थर्ड कैटेगरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें स्किल ट्रेनिंग के अंतर्गत आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर चैप्टर 4 में स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हमारे बच्चों के राइट्स लिखे गए। तो अभी गवर्नमेंट ना, आप शायद, मुझे पता नहीं स्किल ट्रेनिंग के बारे में कितना पता है, अभी नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ही ऑलमोस्ट 50 सीट्स है जिसमें एएसडी बच्चों को या अदर डिसेबिलिटी बच्चों को, वन ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट आल्सो संकल्प प्रोग्राम आल्सो स्टार्टेड एंड मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री आल्सो स्टार्टेड प्रमोद महाजन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसके अंदर भी हमारे बच्चों को कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने 240 एरियाज फाइंड आउट करके रख चुके हैं, जिसमें हम बच्चों को अलग अलग स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड दे सकते हैं। उसमें भी एएसडी बच्चों के लिए भी अलग से प्रोग्राम ऑलरेडी डिजाइनेड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स को ये भी शायद अवेयरनेस कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन आप उसके लिंक में मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे आपको जाना है, किस तरह से उसको इनकैश करना है, और क्या क्या आगे आपको उसके लिए कंप्लीट फॉर्म यानी किस तरह से एप्लीकेशन करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शायद आपको मालूम होना चाहिए। जस्ट वन सेकंड वन इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कितना फोकस करते हैं। एवरी चाइल्ड बच्चों पेरेंट्स का एक ये रहता है कि माय चाइल्ड इज गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब या एनी अदर इनकैशमेंट फॉर द प्लेसमेंट फॉर द गवर्नमेंट एरिया। तो ऑलरेडी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 chapter 6 is a very important section, is a 4% reservation for the government job, especially 1% is a autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness. This is not a complete 4% for the ASD. 1% other than to 4%, 1% is a autism and intellectual disability and specific learning disability and mental illness. Major people are the confused ki my 4% reservation for the ASD child, nothing. This 4% is all 21 disability, other than to 1% is only for the autism या ASD child. ये भी आपको पता होना चाहिए। मेजर पीपल अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एवरी चाइल्ड गो टू द हायर एजुकेशन। हमारे ASD बच्चे काफी अच्छा इंजीनियरिंग एजुकेशन कर रहे हैं। नागपुर इज वन ऑफ द राउट ऑल्सो की इंजीनियरिंग होके यू कैन प्लेसमेंट इन सॉफ्टवेयर कंपनी इन हैदराबाद ऑल्सो। तो दैट पीपल आर द गो टू द UPSC exam in plan them to other people, so that time you can encash your reservation criteria. आप इसके ये देखो, ये चीज ना मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये आपके बच्चों के राइट्स है, किसी ने रखे नहीं, आपके बच्चे के लिए दिए गए। तो आप लेते टाइम आप लॉन्ग टर्म एंगल से सोचिए। आप जिसका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में, यू कैन प्लान देम कि नहीं मेरा बच्चा यूपीएससी एग्जाम पास करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, XYZ जो भी हायर एजुकेशन के लिए जाएगा। तो एजुकेशन ऑल्सो 5% रिजर्वेशन एंड जॉब ऑल्सो 4% रिजर्वेशन। तो शायद आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा और ये आपको क्लियर होना जरूरी है। अभी बात होती है कि हम पेंशन प्रोसेस, मेजर पीपल आर हमारे पास आते हैं, एवरी चाइल्ड पेरेंट्स आल्सो नो कि ऑटिज्म एएसडी का एक अच्छा स्ट्रेंथ मुझे आई विल ऑब्जर्व इन लास्ट 4 years कि मेजर पीपल आर द एक above upper family and not in major people are the below poverty line. So that's why it's a good sign कि बहुत से लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में है। तो शायद इज अ मेजर पीपल हमारे बात क्या होगा, 90% पीपल आर कि नहीं मेरा बच्चा अभी सर छोटा है। देखो मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मुझे भी लगता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो डेफिनेटली आप तो एक स्पेशल नीड बच्चों के पेरेंट्स है, तो मुझसे ज्यादा तो आप ही उस चीजों के बारे में सोचते होंगे। तो ये बिल्कुल सही है आपका सोचना। तो लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि आपके बच्चे के लिए ऑलरेडी 2016 में भी एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का निकला था, जिसमें क्लियर कट लिखा है कि आपके बच्चे के बाद आपकी फैमिली एज पर योर चॉइस, कि आप अपने बच्चों के यानी फादर है एज अ जॉब पे, तो आप अपने मदर्स को भी पेंशन दे सकते हैं, उसके बाद अपने बच्चों के भी नाम पे कर सकते हैं। उसमें आप सिबलिंग भी डाल सकते हैं या अपना पीडब्ल्यूडी चाइल्ड भी डाल सकते हैं, जिसको हम एसडी बच्चे भी बोलते हैं। पीडब्ल्यूडी इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। सेकंड वन 2013 में भी ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री का था जिसमें पेंशन के लिए क्लियर कट लिखा है, लेकिन कुछ शब्दों का जाल है जिसमें हम शायद कहीं कंफ्यूज होते हैं, या फिर गवर्नमेंट मशीनरी ना कुछ चीजों को मैनिपुलेट करती है। तो शायद आपको ये समझना और रीड करना पड़ेगा। कुछ चीजें मैं आपको ये भेज दूंगा लगे तो आप इसको पढ़िए
major people are the working in government sector या especially in central government, you can plan them to बहुत से parent बोलते हैं कि मेरा pension मेरे बच्चों को जाना चाहिए, तो you can use them in all circular यानी सर्कुलर देम कि आपको गवर्नमेंट क्या बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आल्सो। अभी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। शायद मैं जब भी कोई 99% स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यू कैन डायरेक्टली, आपने नाम सुना होगा डीबीटी आल्सो, DBT direct benefit transfer for the money, any other cash and any other benefit for the people, your child, you can directly transfer the amount of your child account। तो बहुत से 90% ब्लाइंड रहे या ASD रहे, हमारे बच्चों का अकाउंट भी ओपनिंग का एक प्रॉब्लम था पहले। शायद हम ASD बोला तो अरे ऑटिज्म बच्चे किस तरह अकाउंट डील करेंगे या फिर ब्लाइंड कैसे करेगा या जो भी है। तो 2000 लगभग 13-14 की बात है, RBI इज वन ऑफ द सर्कुलर कि जो भी बच्चे इस तरह से प्रॉब्लम ऑफ डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेसिफिक लिखा है, सेरेब्रल पाल्सी यानी ये रिलेटेड टू, ये बच्चे भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप लीगल डिपार्टमेंट के थ्रू एक्सेस आपको मिल सकता है, आप LLC के थ्रू उसका सपोर्ट ले सकते हैं। उसके लिए भी ये आप कोई भी बैंक में जाके अपने बच्चे का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को मैं पूछता हूँ कि ये जब भी गवर्नमेंट की स्कीम्स इनकैशमेंट की बात आती है, जो भी लाभ XYZ अमाउंट या जो भी बेनिफिट है, नॉट इन फाइनेंशियली एंगल, अदर देन टू ऑल्सो, तो दैट टाइम आपके पास ये भी नहीं, बैंक वाले हमें बताते हैं, जो भी नेशनल बैंक है, जो भी XYZ प्राइवेट सेक्टर है, देखो उनकी गलती नहीं है ये कि उनको ये पता है नहीं है। देखो हमारी भी काम है कि कुछ चीजें हम भी उनको अवेयर करें। बहुत सारे पेरेंट्स ऑलवेज ब्लेमिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर, जो भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन जिस चीजों में, देखो सडनली कोई चीज नहीं होती है। एक पेरेंट्स को कोई हर्डल्स क्रिएट हुआ है तो दैट टाइम ही कुछ पॉलिसी क्रिएट हुई है। कुछ चीजें आप यू कैन इमेजिन 15 इयर्स पहले जिनके घर में बच्चे ऑटिज्म होंगे या जो बिफोर 20 इयर्स हो गए, तो उन्होंने कितनी चीजों को हर्डल्सली फेस किया होगा। शायद हमें उससे आज 50% क्यों ना हो हर्डल्स को हमने आज कंप्लीट करके एक स्मूथली ट्रैक अप किया है, तो शायद मुझे लगता है दिस अ गुड साइन। तो ये चीजें जितना हर्डल्स आएंगे उतना अमेंडमेंट होगा, जितनी हम आगे प्रॉब्लम को फेस करेंगे उतना पॉलिसी में भी बदलाव आएगी। तो दिस ये चीजों को भी आपने पॉजिटिव लेना चाहिए। तो शायद ये आपको RBI के रिलेटेड या बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर फॉर द अकाउंट रिलेटेड एंड अकाउंट रिलेटेड एनी अदर ट्रांजेक्शन अदर थिंग ऑल्सो। हाँ, दिस आर वन ऑफ द मेजर FAQs कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में है या XYZ सेक्टर में है। Sorry to major people are the private sector also, but कुछ चीजें हैं जो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा बिलोंग करती है। देखो धीरे धीरे हम ना सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें भी धीरे धीरे हम स्टेट गवर्नमेंट पे भी आ रहे हैं। तो शायद धीरे स्लोली अपग्रेडेड स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, होल स्टेट आर प्लानिंग देम कि सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजों को डायरेक्टिव्स को हम कॉपी करके गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट करें, तो शायद हो रहा है। तो मेजर FAQs की बच्चों के रिलेटेड ट्रीटमेंट एंड अदर थिंग एंड रिहैब बेस्ड एक्टिविटी, तो दैट टाइम इज ट्रांसफर एंड रोटेशनल ट्रांसफर जो भी गवर्नमेंट की होते हैं। तो ये सर्कुलर क्या है, तो 2018 में एक अच्छा सर्कुलर आया था कि हम हमारे जितने भी बच्चे हैं, स्पेशली हमारे जितने भी PWD है, जो भी पर्सन में डिसेबिलिटी है, जो 21 डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, उसमें ऑटिज्म भी बच्चे हैं, ASD भी बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी एक गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि हम हमारे जहाँ पे भी है उसमें हमारा ट्रांसफर के लिए हमें कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। शायद ये आप अपने बच्चों के करियर एंगल से रिलेटेड या मे बी अदर देन टू जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, तो शायद ये इसका सर्कुलर का यूज आप ट्रांसफर रिलेटेड या रोटेशनल ट्रांसफर रिलेटेड आप यूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो ये बहुत ही अच्छा सर्कुलर है, आपको पता होना चाहिए। इसी बेस पे ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी अब मैं कुछ चीजें आपको गवर्नमेंट सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ लेके आऊंगा। आई एम वर्किंग इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिलेटेड टू पॉलिसी एंड अदर थिंग ऑल्सो ना, मैं कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी में अंदर भी काम करता हूँ, तो शायद मुझे कुछ चीजें पता है जो मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। तो शायद जितनी गवर्नमेंट के अंदर भी एम्प्लॉयज है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं, उनका भी एक 2097 का एक सर्कुलर है जिसमें ये चीजें क्लियर की है कि इनको कहाँ का ट्रांसफर देना चाहिए, कहाँ का नहीं देना चाहिए। ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक सर्कुलर। ये चीजों को बहुत आप माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो शायद आपको पता होना चाहिए।
एक छोटा अभी जितनी मैं आने वाले 5 मिनट में स्कीम बताना हो या जो भी कुछ बेस बताओगे, मेजर इज अ स्टेट। कुछ मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि ये एपी में है क्या अदर थिंग है, तो मैं जितने भी आंसर्स है मैं आपको जरूर बताऊंगा जो अलग अलग स्टेट के क्या क्या है। ये पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, आई विल स्पीक टू अदर थिंग, यानी आपको अलग से मैं उस चीजों के बारे में क्लियर करूंगा। संजय गांधी, यू नो वेरी वेल, 1000 रुपीज एवरी मंथ फॉर द एवरी चाइल्ड। आप देखिए बहुत से पेरेंट्स भी पूछते हैं कि सर 1000 रुपए का क्या करना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स को भी लगता है मैं 1000 रुपए क्यों लूं, क्योंकि मेरा इकोनॉमिकल लेवल अलग है और मैं शायद उस पेरेंट्स को एक सोशल एंगल का खुबिया रहता है, मैं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ देखिए गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, आप नहीं लेंगे तो और कोई लेगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कोई भी क्यों ना 100 रुपीज क्यों ना रहे, 10 रुपीज क्यों ना रही, आपके बच्चों का राइट है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। तो आपको ये लेना चाहिए और आपने उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। और आप उस क्राइटेरिया में मुझे लगता है एवरी पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप वो संजय गांधी निराधार योजना के लिए क्वालिफाई है। जो उसके सर्टिफिकेशन, आधार कार्ड, मैंने जैसे बताया पहले गवर्नमेंट के कुछ नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया है। इनकम इज अ मेजर पार्ट है कुछ चीजों में, कुछ चीजों में नहीं है, लेकिन 95% ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम कई जगह अप्लायंसेस में अदर देन टू कई जगह इनकम का क्राइटेरिया है। लेकिन बहुत सी स्कीमों में पेरेंट्स के इनकम को भी अपग्रेड कर दिया गया। जैसे रेगुलर के लिए 3 लाख है, तो आपके बच्चों के लिए 6 लाख तक का बेनिफिट के लिए क्वालिफाई करके रखा है। ये कुछ चीजें है, ये अदर देन टू बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम्स है। एक पेरेंट्स का, कुछ पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर आई प्लान देम कि मेरे बच्चों के लिए आई स्टार्टेड वन रिलेटेड टू स्किल बेस्ड प्रोग्राम या मे बी वन शॉप ऑल्सो। जितने बच्चे एडल्ट होते हैं, जो भी बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो आई प्लान एवरी पेरेंट्स ऑल्सो प्लान, मैं भी मेरे बच्चों का बड़ा हो जाऊंगा तो आई प्लान कि नहीं यार कुछ अच्छा बिजनेस होना चाहिए। तो दैट टाइम parents is not capable to 5 to 10 lakhs rupees immediately in start any other shop. So that time we can support also in अपंग वित्त महामंडल। जैसे मैंने आपको NHFDC के बारे में बताया ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले एल्यूमको के साथ में, उसी का ही सब ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में रहता है। उसी को महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट एरिया बोलते हैं, जो बांद्रा में है। आप इसके अंदर भी आप अपने बच्चों के रिलेटेड, जो बच्चे बड़े हैं, 20,000 to 10 लाख रुपीस तक का पर्सनल लोन स्कीम्स आप इनकैश कर सकते हैं। इसमें 2 क्राइटेरिया है, एसएचजी ग्रुप, एंड एसएचजी इज वन ऑफ द कोरम। आप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं या एक ग्रुप बना के भी आप कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी यू कैन प्लान देम सबमिटेड टू प्रपोजल आल्सो इन फाइनेंस वित्त महामंडल आल्सो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चे बड़े हो गए, देखिए बहुत से पेरेंट्स तो मुझे कंप्लेंट आती है कि नहीं सर यहाँ पे देने के बाद 6 महीने प्रपोजल नहीं होता। मैं जो चीज क्लियर हूँ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देखो मेरा ऑलवेज एक थॉट प्रोसेस है कि कोई भी चीज नहीं मिलती इसलिए अप्लाई करना या नहीं करना ये कितना अच्छा है मुझे पता नहीं। मैं एक थॉट प्रोसेस में रहता हूँ कि मुझे पता है यहाँ 6 महीने लगे, तो आई पाइपलाइन ऑल्सो कि मैं डाल दो प्रपोजल। क्या होगा कि वो शायद 6 महीने के बाद मिलेगा, मे बी इज अ 1 ईयर्स, मे बी इज अ 2 ईयर्स, मे बी इज अ 3 ईयर्स, बट आपने अप्लाई नहीं किया तो वो लड्डू आपको पता कैसे चलेगा खट्टा है कि मीठा है। तो यू कैन प्लान देम कि ऑलवेज गवर्नमेंट स्कीम का समझ लीजिए आपको लगता है, लेकिन ऐसा अभी पहले तरीका नहीं रहा। Every schemes and every program and every organization transparency based reason 90% on application in portal based. That's why no in the manipulation also कि इसमें कुछ chances होने के हैं। हाँ, time bounding is not a limit for the government sector, but you can process कि आप apply करके रख दीजिए। आप कर सकते हैं, शायद मुझे लगता है is a good thing। हाँ, एक ये चीज को भी आपको एक्शन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जैसे 2016 एक्ट है एक गवर्नमेंट का जो आरपीडब्ल्यूडी है, जो इनिशिएटिव बेस पे बना है। वर्ल्ड वाइज एक यूनिवर्सल पॉलिसी होना चाहिए कि हमारे देश में क्या अच्छा है, कंट्रीज में क्या अच्छा होना चाहिए, उसी को बेस करके अपना 2016 एक्ट हुआ है, जिसको हम राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 बोलते हैं। उसी के बेस को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑल्सो अमाइंड करके एज पर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हमारा सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस एंड नीड बेस ऑफ लोकल एरिया, उसको एक अलग सा पॉलिसी बनाते हैं, जिसको पॉलिसी 2018 जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी सेपरेट 2016 को आगे रख के बनाई है। शायद ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि
जरूरी नहीं है कि जैसे 13 चैप्टर्स ऑफ 2016, तो उसमें से मेजर फोकस ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट अर्ली इंटरवेंशन, मे बी दिस एग्जांपल फॉर टू यू ऑल, कि इस तरह से हो सकता है। मे बी पीपल ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज की फोकस ऑन स्किल बेस, मे बी इन फोकस ऑन employment base, maybe in focus on ki employment for the permanent job placement of the 4%, education also, inclusion also, ये depend of the every state, ये उसका गवर्नमेंट का अलग अलग एक अपना पॉलिसी हो सकता है। शायद ये हर गवर्नमेंट का अलग अलग है, आप सर्च करेंगे, एवरी स्टेट इज अ सेपरेट पॉलिसी ऑफ द एवरी गवर्नमेंट इन रिलेटेड टू अदर स्टेट ऑल्सो। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 90% या जितने पेरेंट्स, स्पेशली एएसडी के पेरेंट्स से मैं बहुत बार पूछता हूँ कि आप आरटीई के अंदर एडमिशन नहीं क्यों लेते हैं, तो 90% पेपर नहीं हम तो इकोनॉमिकल स्टेटस में नहीं, हम रिजर्वेशन में नहीं है, जो भी लाभ जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनको पता नहीं है। देखो आरटी, मैं नहीं बोलता हूँ आरटी के अंदर आप कैपेबिलिटी, आप फाइनेंशियली है या नहीं है, ये करना जरूरी नहीं है। देखो आरटी बनाया किसके लिए, जो बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन चाहिए। आरटी के अंदर कर हमारे राइट्स में ही लिखा गया है कि एवरी चाइल्ड गो फॉर द रेगुलर स्कूल। अब इसमें कहा आ गया डिसेबल बच्चा है या फीमेल है या जेंडर है, नो एनी द सेग्रीगेशन। हमारा फोकस है हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में अच्छे बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए, एक अच्छा एजुकेशन लेना चाहिए। अब मेरा सवाल बहुत से पेरेंट्स से है, आप आरटी में अप्लाई करेंगे तो शायद आपका जो फाइनेंशियली बर्डन ऑफ स्कूल का इसका जो है फीस का है, शायद वो आप यू कैन यूज देम टू अदर थिंग्स, रिहेबिलिटेशन रिलेटेड प्रोसेस, यानी जैसे ओटी के लिए पैसा लग रहा है, मेडिसिन से रिलेटेड लग रहा है, अदर देन टू ट्यूटोरियल के लिए लग रहा है, मे बी जब आपके घर में सेपरेटली टीचर्स आपको लगता है कि होना चाहिए, तो डिपेंड ऑफ योर चाइल्ड एंड योर इकोनॉमिकल स्टेटस, तो आपने जरूर आरटी इज द नो लिमिट कि आपको उसके लिए इतना इकोनॉमिकली इतना स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, यही कास्ट होना चाहिए और आपके बच्चे। हाँ, जनरल पीपल के लिए जरूर है, डिसेबिलिटी के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो यू कैन प्लान देम टू सीबीएसई रिलेटेड टू एजुकेशन योर चाइल्ड, एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट आपको एप्लीकेशन एडमिशन लेना है, एनी अदर बेस्ट स्कूल, you can encash the RT school admission process. Currently, the Maharashtra government is started last 3 days before, and 3rd March to 23rd March also in admission process started RT. You can encash the opportunity. These people are जिनके बच्चे छोटे हैं अभी, जो बच्चे अभी 3 years to 7 years के स्लैब में, 6 years के, तो encash the good opportunity current scenario. इसमें आपको पूरे 10th स्टैंडर्ड तक के कोई भी फाइनेंशियल बर्डन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस लॉटरी बेस, नॉट 100% की कमिटेड की आपको एडमिशन मिलेगा, बट यू कैन अप्लाई देम फर्स्ट। आप हम प्राइमरी सोचते हैं हमारे बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिलता है, इसलिए हम पेमेंट देके एडमिशन ले लेते हैं अच्छे स्कूलों में। आप अभी ना ये माइंडसेट को निकाल दीजिए, वो एक टाइम था, थोड़ा हर्डल्स है, कहीं ना कहीं बैरियर है, आज भी हम ये बोल रहे हैं, जितना मैं इजीली बोल रहा हूँ एडमिशन मिलता है, मुझे पता है कि एसडी बच्चों को आज भी हम एडमिशन लेने जाते हो तो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एएसडी है या ब्लाइंड है या ऑर्थोपेडिक है या जो भी लाभ एक्सवाइजेड पीडब्ल्यूडी है, हम बताते तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं ना। यू कैन फर्स्ट थिंग एडमिट इन स्कूल, देन यू कैन क्लियर देम। फिर क्या होगा, आपको स्कूल में एडमिशन मिलने के बाद, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपका एटीट्यूड किस तरह हमारे बच्चों को देखने की तरफ, क्योंकि आप नहीं दे रहे, आपकी गवर्नमेंट के राइट्स हैं कि आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन देना है। यू कैन कंप्लीट देम टू गवर्नमेंट सेक्यूरिटी बॉडी, जो भी एक्सपायर्ड लोकल बॉडी है, उसके लिए हम बैठे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बैठी है। शायद पहले ही हम वो चीजों को एक पैरामीटर की तरह देखते, एक बड़ा इसके तरह माउंट की तरह देखते, और हम वो बड़ा सी चीजें आगे लेके जाके एडमिशन के लिए सोचते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स को मैं यहाँ गाइड करता हूँ, आपका बच्चा, योर चाइल्ड इज नॉर्मल, गो टू द एडमिशन, आप जाइए करिए, और उसके बाद में हम आगे देखेंगे क्या होगा। तो शायद इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, करंट सिनेरियो, शायद आप इसको इनकैश कर सकते हैं। करंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टार्टेड आरटी एडमिशन, तो ये बहुत अच्छा है कि इसमें आपके पैसे काफी बचेंगे और अच्छा गुड एजुकेशन अच्छे एनवायरनमेंट में और कुछ अच्छी चीजों में मिलेगा। हाँ, एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद मेजर पीपल आर सेइंग कि सर अभी किस तरह हम बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या होगा, हमारे बच्चों को किस तरह इंक्लूजन के पैरामीटर में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, एनीबॉडी गाइड, यानी ऐसा पूछते, बहुत बार पूछते, आई ऑलवेज से नेम, आप मत चिंता कीजिए, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, ऑलवेज गवर्नमेंट जितना आप सोचते हैं ना उतना ऑलरेडी पेरेंट्स ने फेस किया चुका रहता है, या मशीनरी में, मशीनरी यानी मीन ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी मशीनरीज है, जैसे हम समग्र शिक्षा, अदर देन टू गवर्नमेंट मशीनरी काम कर रही है, उनको ये एफएक्यूज है। आप प्लीज
ये चीजों का गलत मत लीजिएगा। आपको लगता है ये प्रॉब्लम आपके लिए, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन सिस्टम के लिए प्रॉब्लम सो फार हो चुका है या पहले आ चुका है, इसलिए गवर्नमेंट उसके ऊपर पॉलिसी पे काम कर रही है। तो स्कूल एजुकेशन फैसिलिटी एंड सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट को ऑलरेडी 1st to 12th स्टैंडर्ड का एक जीआर है, जिसमें मैंने इसके पहले भी एक अलग से एक बुक, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक बनाया था, उसके अंदर भी ये दिया है 2000। ये एक प्राइमरी स्कूल के लिए है, जिसमें आपके बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी एजुकेशन रिलेटेड, प्राइमरी एजुकेशन रिलेटेड। इसमें एएसडी के लिए भी क्लियर कट गाइडलाइन लिखी गई है, और जो अदर देन 21 डिसेबिलिटी के लिए भी की है। ये सब चीजें हैं, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इज सीबीएसई ऑल्सो। अब कुछ चीजें ना ब्रॉडली की चीजें सीबीएसई शॉर्ट में क्रिएट करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको स्पेसिफिक करके अच्छी तरह से लोकल लैंग्वेज में गवर्नमेंट सेक्टर में सर्कुलेट होता है। वैसे ही एक अदर देन टू प्राइमरी, फिर हम आते हैं, अभी मुझे एक क्वेश्चन भी आया था, हायर एजुकेशन। डेफिनेटली हायर एजुकेशन के लिए भी जरूरी है। हायर एजुकेशन के लिए मैंने जैसे बताया, आपके बच्चों के लिए 5% ऑफ रिजर्वेशन एनी गवर्नमेंट सेक्टर हायर एजुकेशन आपके लिए है। आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, यू कैन प्लान देम। योर चाइल्ड इज गो फॉर द एनी अदर सेक्टर, यू कैन प्लान देम। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिलेटेड टू, यू कैन प्लान देम। ये सब चीजें ऑलरेडी है, आप जो सोच सकते हैं वो हो सकता है, फर्स्ट थिंग क्लियर। लेकिन आप फर्स्ट में ही सोचेंगे कि अभी 10वीं में क्या होगा, तो शायद मुझे लगता है ये थोड़ा 9 साल आप जो सोच रहे हैं ना, इसमें आपका कुछ चीजें वेस्ट हो सकती है। तो डेफिनेटली कैन प्लान देम एज पर द सिचुएशन। आप फर्स्ट में फर्स्ट का ही सोचिए। आप में फर्स्ट में डालते तो शायद 10वीं का सोचना गलत है। बहुत बार पेरेंट्स ना बहुत लंबा सोचते हैं, यानी लॉन्ग टर्म विजन होना अच्छी बात है, लेकिन उसके बीच में हम शॉर्ट टर्म भी कहीं खो ना दे। तो शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको इस तरह से एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए भी एजुकेशन रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी की है, जिसमें हम एग्जामिनेशन में कुछ उसको कंप्यूटर या अदर थिंग चाहिए, उसको राइटर चाहिए, उसको अलग से सपोर्टिव सिस्टम चाहिए, एग्जामिनेशन में टेबल है, ग्राउंड फ्लोर है, एक्सेसिबिलिटी है, एवरीथिंग इज प्रॉपर प्री प्लान देम। अब ठीक है, अब बहुत से पेरेंट पूछते हैं कि सर डेफिनेटली ये इम्प्लीमेंटेशन में कितना इफेक्टिव है। डेफिनेटली देखो, कोई भी चीज गवर्नमेंट सेक्टर में आती है कि नॉट मैजिकली ना और एक दिन में या 1 मंथ कैन मिरेकल थिंग, कि ये आप मत सोचिए, उस पर एक प्रोसेस है। मैं ऑलवेज पीपल आर क्लियर दे कि दिस अगेन दिस अ प्रोसेस। गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉट ए मैकेन, ये कोई एक रोबोट नहीं है जिसको रात में सपना गिरेगा और दूसरे दिन सब कुछ हो जाएगा सडनली। दिस अ प्रोसेस, अगेन इन प्रोसेस। हाँ, एक्सेसिबिलिटी पार्ट नहीं है, कई जगह बहुत सी जगह मैं समझ सकता हूँ, बट गवर्नमेंट ऑल्सो स्लोली कैन अपग्रेड देम एक्सेसिबिलिटी। आप देखो बहुत सी चीजों में, आप भी मार्केट में यू कैन विजिट देम, यू कैन अदर थिंग। तो आप देखते होंगे मार्केट में अभी रैम दिखने लग गए, आपको रैम्स के साथ हैंडल्स दिखने लग गए। एक आपको चेकर्स टाइप, आप बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर की बिल्डिंग में जाइए, दैट टाइम आपको दिखेगा कि मार्केट में कुछ कुछ चीजें दिखने लगी है। अभी दिस अ गुड साइन, दिस अ पॉजिटिव थिंग। ये चीजें सडनली नहीं हुई है, इसके लिए भी किसी ने तो भी 20 इयर्स का सैक्रिफिकेशन किया है। आगे भी कुछ शायद आप में से किसको करना पड़ेगा, मे भी आने वाले कुछ सालों में शायद ये थोड़ा स्मूथली हो सकता है। मैं अगेन बोलता हूँ, दिस प्रोसेस। कुछ चीजें नहीं होगी, गलत नहीं होगी तो अच्छी भी नहीं होगी। तो गलत होना या होना चाहिए इसलिए कुछ अच्छे होने की राह देखना है, नहीं। तो शायद कुछ चीजें होने के लिए कुछ सडनली कुछ चीजें क्रिएट होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट या सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो इज वेरी गुड पार्ट ऑफ। आप प्राइवेट के भी ऑफिस देखिए, या जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं, यू कैन आप विजिट कीजिए, उसमें एक्सेसिबिलिटी के पूरे नॉर्म्स को फुलफिल किया गया। हाँ, डेफिनेटली कुछ चीजें मेंटेनेंस एंड अदर थिंग इज अदर देन पार्ट, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हो रहा है कुछ चीजें। और हम चीजें जितना सोचते हैं शायद उससे बेटर तो हो रहा है, इतना मेरा अभी तक तो ऑब्जर्वेशन है। शायद एग्जाम में बच्चों को री एग्जाम देना है या फिर ओपन स्कूलिंग में जाना है, कुछ टीचर्स है, पेरेंट्स है, या फिर एग्जामिनर्स है, या आपके स्कूल के एचओडीज है, स्पेशल एजुकेटर्स है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन का बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी गवर्नमेंट में ऑलरेडी सर्कुलर में क्रिएट किया गया। कुछ चीजें आपके बच्चों को एग्जाम में रिलेटेड टू चाहिए, फॉर एग्जांपल कुछ चीजें बच्चों को साइंस है, मैथ्स है, इसका अल्टरनेटिव सब्जेक्ट के लिए भी आपको अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ने दिए हैं, जो आप वो बच्चों को साइंस की जगह दूसरा अल्टरनेटिव सब्जेक्ट दे सकते हैं। ये भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने किया है। डिपेंड ऑफ द हर गवर्नमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ अलग किया है, लेकिन एक यूनिफॉर्म लेवल पे अभी होना बाकी है। शायद मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में हम उस चीज को फेस नहीं कर, यानी पॉजिटिवली लेंगे और आगे हो पाएगा। एक गवर्नमेंट का लेटर भी है, शायद आपने 2014 में निकला था। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, हम 2020 में बैठे हैं, 2021 की बात कर रहे हैं। एक राइटर की जरूरत ऑटिज्म बच्चों के लिए सेपरेट निकला था। शायद
इमेजिन कीजिए कि दैट टाइम दिस पीपल, एक शायद एक बच्चा होगा जो शायद ऑटिज्म बच्चा एग्जामिनेशन के लिए गया होगा, सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए, तो शायद उसके लिए एक सेपरेट क्रिएट की गई है। इट्स अ गुड साइन। ये तो सर्कुलर है, गवर्नमेंट ने खुद निकाला है, गवर्नमेंट एजुकेशन मशीनरी ने, कि बच्चों को, हमारे ऑटिज्म बच्चों को अलग से राइटर और रीडर की जरूरत है और उनको देना चाहिए। इट्स अ सेपरेट सर्कुलर ऑल्सो। शायद ये बेस लेके आप आगे भी फेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेंसिटाइज कर सकते हैं। कुछ चीजें सिस्टम को पता नहीं रहती। देखिए बहुत सारा हमारे भी घर में कुछ चीजें हमें पता नहीं रहती है। शायद मैं भी काम करता हूँ तो शायद 5 साल पहले कोई जीआर आया होगा या गवर्नमेंट सर्कुलेशन आएगा, शायद मैं नहीं होगा अवेयर, लेकिन किसी ने मुझे बताया, हाँ यस रिकॉल देम कि आज ये सर्कुलर निकला था, यस यस राइट, तो मुझे ये बच्चों को राइट्स देना चाहिए। तो शायद देखो सिस्टम भी, अगेन मैं वही बोलूंगा, सिस्टम को कभी कोई चीजें बताना पड़ता है, थोड़ा अलर्ट करना पड़ता है, मे बी अवेयर करना पड़ता है, मे बी अवेयर होती है तो थोड़ा सेंसिटाइज करना पड़ता है। ये तीनों चीजों को समझ के हम अपने बच्चों को अच्छा एक इंटरव्यू पैरामीटर में आगे लेके जा सकते हैं एजुकेशन बेस में। अभी ये चीजों पे मैं ज्यादा, आपके बहुत से पेरेंट्स इसमें भी मुझे एक एफएक्यूज में आता है, बस एंड रेलवे कंसेशन एवरीथिंग, इसमें थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेशन चल रहा है। शायद बहुत से पेरेंट्स मुझे आते हैं, सर अभी हमारे को ऑटिज्म सर्टिफिकेट मिल गया, अभी रेलवे कंसेशन का क्या। एवरी पेरेंट्स, मुझे बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि नहीं मेरे बच्चों को बस का कंसेशन चाहिए, एजुकेशन का रेलवे का चाहिए। तो ये कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी फैक्टर्स पे पेंडिंग है ऐसा मुझे लगता है, या फिर सेंसिटाइजेशन की और जरूरत है। तो जो फाउंडेशन है या फिर अदर देन पेरेंट्स है, यू कैन प्लान देम टू सेंसिटाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट आल्सो, कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों का राइट्स है, शायद हमें ये देना चाहिए। तो इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। इसके लिए नागपुर गवर्नमेंट में स्मार्ट कार्ड मिलता है, शायद आपको पता होगा। इसका एक स्मार्ट कार्ड बनता है, जैसे पहले के पीपीटी में, पहले के स्लाइड में था कि एक ऊपर व्हाइट कलर का देखिए, एक आप पहले एक सर्टिफिकेट आता था रेलवे का, जो आप काउंटर पे जाके जो कंसेशन के क्राइटेरिया एज पर डिसेबिलिटी, आपको 3 टायर में, फर्स्ट क्लास में या सेकंड स्लीपर में कंसेशन मिलते हैं हर डिसेबिलिटी को। लेकिन फिर ऑनलाइन, अभी एवरी चीज ऑनलाइन ना, आईआरसीटी आल्सो वेब बेस्ड पोर्टल, तो उसमें कैसा करना चाहिए, तो वन इज अ स्मार्ट कार्ड इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरी डीएमआर ऑफिस, जैसे नागपुर में सेंट्रल रेलवे का डीएमआर ऑफिस है, वेस्टर्न का है, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तो इशूइंग द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो आप वहां पे सबमिट कीजिए, शायद आपको 90 डेज के अंदर एक स्मार्ट कार्ड आएगा। स्मार्ट कार्ड इज वन ऑफ द, एक छोटा सा, एक जैसे मैंने साइज बताया उस तरह का एक पेपर होता है अच्छे इसका, और उसके ऊपर एक नंबर है, सीआर नंबर करके, यू कैन पुट अप देम टू आईआरसीटी वेबसाइट ना। आप जब भी एप्लीकेशन भरते, जो भी देखिए रेलवे का हम अप्लाई करते हैं हमारे बुकिंग के लिए, तो दैट टाइम पूछा जाता है, यू कैन सीनियर सिटीजन या आरपीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी या जो भी है, यू कैन क्लिक देम टू पीडब्ल्यूडी, तो आपको पूछते हैं आपका रेलवे का ये नंबर बताइए कार्ड का, तो यू कैन इंसर्ट देम टू दिस नंबर, तो शायद ऑटोमेटिकली आपको वो कंसेशन डिस्काउंटेड टिकट आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होता है ऑनलाइन बेस। और मे बी आपको विंडो टिकट निकालना है तो डेफिनेटली यू कैन यूज देम टू सेम स्मार्ट कार्ड आल्सो। शायद ये थोड़ा ट्रबलिंग है, अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम चल रहे हैं, कई जगह मिल रहा है कई जगह नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे जो पता चला है थोड़ा सा पॉलिसी फैक्टर है जो शायद हमें और सेंसिटाइज के लिए करना पड़ेगा। तो एक एक हमें कुछ चीजों को आगे जाके सोचना पड़ेगा अभी। हाँ, ये आपका बहुत एक अच्छा, इमीडिएटली हम इसको एक ऐसा बोलेंगे कि जो जो डिस्ट्रिक्ट्स है या कोई भी होल कंट्री से जो भी लोग है, कोई बॉम्बे या अदर देन तो महाराष्ट्र देन अदर एपी है यूपी, जो भी कोई हो गए, तो एवरी सेक्रेटरी बॉडी जो भी रहती है ना, लोकल बॉडी जिसको हम बोलते हैं एनएमसी या जेडपी जिला परिषद या जहाँ पे जो भी कुछ होगा, पंचायत जो भी कुछ होगा, तो दिस अ मैग्नेट फॉर द 2016 एज पर द एक्ट कि आपको ये डिसेबिलिटी बेस के लिए 5% रिजर्वेशन ऑफ फंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन last year budget is a 7.9 and almost 8 crore rupees is a reserve of fund for the Nagpur municipal corporation only for the plan for the PWDs related। तो बहुत से पेरेंट्स या बहुत से ऑर्गेनाइजेशन फंड को पता ही नहीं हमारे बच्चों के लिए इस तरह के फंड रिजर्व है। आपको बताओगे अभी 7 करोड़ रुपीज इज अ currently is a plan name ki after the COVID, क्योंकि last 11 months is all people are the whole country and other globally also in phase in COVID related, so that's when no another plan last 11 months related to fund expenditure also in 5% reservation। तो शायद नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्लान कर सकते हैं कि आपके बच्चों के लिए एवरी डिस्ट्रिक्ट
every NMC and every government sector is a 5% reservation. आपके बच्चों के फंडिंग है, आपको उसके अंदर अलग अलग बेनिफिट आप अपने बच्चों के रिलेटेड, नॉट इन ग्रुप के लिए ऐसा कर सकते हो. कैन प्लान देम any other workshop, any other new policy, any other mediclaim, any other as per 2016 act जितने 13 chapters है, you can tailor made policy and create in local level. No any other hurdles for the कोई परमिशन की जरूरत नहीं स्टेट गवर्नमेंट की, कोई जिला परिषद की परमिशन नहीं, कोई स्टेट गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट. you can plan them, you can coordinate with the local body and एक अच्छा पॉलिसी डिजाइन करके आप अपने बच्चों को ये फंडिंग से बेनिफिट दे सकते हैं. जैसे जिला परिषद नागपुर इज अ रिजर्व फंड फॉर द 2 crore रुपीज, द 3-4 प्रोग्राम्स इन लाइन अप. शायद उसमें से 2 प्रोग्राम हमने भी डिजाइन करके दिए. I will already submitted to 3-4 program in ZP and NMC also related to all PWs, not only ASD, other than disability people also. Maybe also कि वो अच्छे से हो जाएगा तो शायद उसका बेनिफिट आने वाले कुछ दिनों में आपको मिल सकता है. ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन यू कैन प्लान देम. आपके ऑर्गेनाइजेशन भी, आप इंडिविजुअल लेवल पे भी यू कैन उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको बेनिफिट ले सकते हैं. तो ये फंडिंग को भी आपको समझना पड़ेगा. उसके बाद में कुछ चीजें हैं, गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भी निकाला है. शायद जितनी गवर्नमेंट की स्पेशल स्कूल है, शायद आपको पता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट अदर देन टू अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, कि हर गवर्नमेंट की एक स्पेशल स्कूल होती है. पहले एक 20-30 साल पहले एजुकेशन का पैरामीटर नहीं था इंक्लूजन. हमारे देश का हिस्ट्री है कि हम पहले स्पेशल स्कूल को इंट्रोड्यूस हुए, बाद में इंटीग्रेशन को है, और हम अभी करंट सिनेरियो इंक्लूजन में चल रहे हैं. तो ये तीनों चीजों को समझना पड़ेगा. एक टाइम था कि हम जहाँ पे कहीं एडमिशन नहीं मिलती तो हमारे बच्चों को एक स्पेशल स्कूल के लिए बोला जाता था. धीरे धीरे अपग्रेड इन अवेयरनेस पीपल, तो इंटीग्रेशन यूनिट पे आए, अपग्रेड होके अभी हम इंक्लूजन पे काम कर रहे हैं. अभी शायद इंक्लूजन को भी हम ग्लोबली सोचते हैं. तो हमारे बच्चों का भविष्य अभी दोनों एंगल पे. लेकिन जो बच्चा अर्ली इंटरवेंशन में डिक्टेट होता है तो उसके लिए शायद रूरल बेस्ड थोड़ा प्रॉब्लम है. आज भी हम नागपुर में काम करते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हम गढ़चिरौली या अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं, तो दैट टाइम देखते हैं कि बेसिक ओटीपीटी की भी अवेलेबिलिटी नहीं है. तो दैट टाइम फेस द बेसिक प्रॉब्लम. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम गवर्नमेंट RBSK के अंदर चला रही है, जिसको डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन DIC बोलते हैं. एवरी डिस्ट्रिक्ट इज अ वन सेंटर DIC. आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे DIC करके इज अ वन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री, और उसके अंदर OT-PT, ऑडियोलॉजिस्ट, सेंसरी, सभी पेडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट एंड एवरीथिंग इज अपॉइंटेड होल प्रोग्राम. और आप वो बच्चों को बेनिफिट ले सकते हैं जो लोग इकोनॉमिकली शायद पता नहीं कि ये चीजों का हमें फायदा मिल सकता है. यू कैन कोऑर्डिनेट विद द सिविल सर्जन ऑफिस, जैसे उसको हम जिला शल्य चिकित्सक या सिविल सर्जन जो डिपार्टमेंट रहता है, यानी गवर्नमेंट मेडिकल अथॉरिटी रहती है लोकल, एवरी डिस्ट्रिक्ट, होल कंट्री, तो कैन कोऑर्डिनेट विद द DIC सेंटर. तो आपको ये पता होना चाहिए, हम जहाँ नहीं गई तो आप शायद कैपेबल है, लेकिन आपको कोई ASD पेरेंट मिलते हैं जिनका इकोनॉमिकल लेवल शायद थोड़ा बिलो पॉवर्टी लाइन है, यू कैन कोऑर्डिनेट देम टू DIC. आप इतना तो कर सकते ना, या इंट्रोड्यूस देम टू अदर स्कीम्स ऑल्सो. तो शायद ये भी आप एक अपने बच्चे की तरह दूसरे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, इस तरह से ब्रॉडली सोचना पड़ेगा. हाँ, एक स्कॉलरशिप स्कीम की बात होती है कि जैसे मैंने पहले बताया कि नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मैं आज भी बोलता हूँ कि 99% पेरेंट्स नॉट अप्लाई फॉर द स्कीम्स. रीजन पता ही नहीं है कैसा वेब बेस है, कहाँ अप्लाई करना है, कब. मैंने पहले भी बोला, मैं अभी भी बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि उसका नॉमिनल फीस शायद आपको लग रहा है कि 1200 रुपए मिलते हैं महीने के, जो भी XYZ मिलता होगा. हायर एजुकेशन 6 लाख तक की इसमें स्कॉलरशिप है, इट्स नॉन रिफंडेबल. तो शायद मुझे लगता है यू कैन इनकैश देम टू ऑल स्कीम्स, स्पेशली स्कॉलरशिप रिलेटेड योर चाइल्ड. आप फिर वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, हमारा बच्चा क्या करेगा, आप इतना मत सोचिए. बहुत से लोग कुछ भी करते नहीं लेकिन स्कीम लेते हैं. तो शायद मुझे लगता है ये मैं लेना या गलत नहीं बोल रहा हूँ, यू कैन प्लान, हमारे बच्चों को जो मिल रहा है वो लीजिए, इतना ही मेरा बोलना है. लेकिन जरूर सोचिए, क्योंकि इसके पीछे का पॉजिटिव चीज मैं आपको बताता हूँ. कोई अप्लाई आप पर्सनली अपने बच्चों के लिए मैं अप्लाई करूंगा तो मैं एक्सेसिबल होगा एक पोर्टल से थ्रू. शायद मैं 10 लोगों को एक्सेसिबल कर पाऊं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मैं कैसे 10 लोगों को बता पाऊंगा कि मैंने वो अप्लाई किया था, लेकिन मुझे लैकुना ये आए, मुझे शायद डॉक्यूमेंट्स ये हुए. तो शायद ये हडल्स कब पता चलेगी या ये एरर्स कब पता चलेगी. यू कैन ट्रायल एंड एरर बेस ना. आप जरूरी नहीं कि आपको मिलना ही चाहिए, आप जरूर उसके अप्लाई तो करिए, शायद मिलेगा तो डेफिनेटली
हाँ, तो शायद कोई भी स्कूल में, आपने नॉर्मल स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है, अदर देन कोई भी स्कूल में पढ़ रहा है, डेफिनेटली एवरीथिंग इज अप्लाई इन दिस पोर्टल। आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप अप्लाई जरूर कीजिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आपको ये इसके बेनिफिट्स जब आप लेना चालू करेंगे तो शायद आपको इसका जरूर फायदा होगा। नेक्स्ट, तो ये एक बहुत इसका बेनिफिट था कि एग्जामिनेशन में सीबीएसई रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, बहुत से बात बताते हैं कि हमें एग्जामिनेशन में पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्या क्या राइटिंग एग्जाम के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है। तो ये 2013 का गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक सर्कुलर है। शायद आप ये हमारे सीबीएसई स्कूल में बताइए या गवर्नमेंट में बताइए या स्टेट गवर्नमेंट में, शायद इसी को लेके गवर्नमेंट ने काफी एग्जामिनेशन से रिलेटेड पॉलिसी टेलरमेड गवर्नमेंट ने अलग अलग गवर्नमेंट ने बनाई है। ये भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। हाँ, अभी जैसे मैंने बताया कि एएसडी यानी एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम रिलेटेड टू 5 अलग अलग अवेयरनेस पैरामीटर है, जिसको हम अम्ब्रेला की तरह बोलते हैं। शायद उसमें कुछ एरिया ऐसे है जो सिवेरिटी बेस्ड मेजर है। कुछ बच्चे इंक्लूजन के लिए जाएंगे, कुछ बच्चे में भी हो सकता है कि हाइपर एंड अदर थिंग, हम जिसको अलग अलग सेंटेंस यूज करते हैं, तो गो फॉर द ओपन स्कूल। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे के पास कौन सी डिग्री है और कौन से विद्यापीठ से या कौन सी यूनिवर्सिटी से ली है, ये कोई पूछेगा नहीं। योर चाइल्ड इज अ पास आउट इन 10th स्टैंडर्ड, डेफिनेटली दिस इज इनफ। योर चाइल्ड इज अ पास आउट इन 12th स्टैंडर्ड, ये कहाँ से पास आउट है क्या, इसमें कोई जानना नहीं चाहिए। तो वन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ऑल्सो फोरम, आप ये बच्चों में इसमें 5th के बाद अपने बच्चों को ओपन स्कूलिंग में भी डाल सकते हैं, जिनके बच्चे शायद अभी कुछ कारणवश या कुछ अवेलेबिलिटी और लोकल रिसोर्सेस नहीं है, तो यू कैन गो फॉर द नेशनल ओपन स्कूलिंग, यू कैन यूटिलाइज देम। इसका बहुत ही अच्छी से आप बच्चों को पास आउट कर सकते। अभी मैं पहले जितने लोग इसमें से बहुत से काफी लोग, अभी तो इंक्लूजन आने से वजह से बहुत से लोगों को रेगुलर स्कूल में एडमिशन हो रहा है, कुछ हडा जरूर है, लेकिन स्लोली अपग्रेडेड देम। तो शायद ओपन स्कूलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। शायद आप अपने बच्चों को ओपन स्कूलिंग के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जहां पे रिसोर्सेस नहीं वहां पे। लेकिन जहां रिसोर्सेज नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी दी तो चलो डाल दिया एक एडमिशन कर दिया, बच्चा पास होते जाए, एटीट्यूड में मत एडमिशन कीजिए। नहीं तो बच्चों का एजुकेशन लेवल, तो देखिए बच्चा एजुकेशन क्या पढ़ रहा है, इससे बच्चा कितना सोशल हो रहा है, ये इज इम्पोर्टेंट। बच्चा स्कूल में जाता है तो जरूरी नहीं कि वो एबीसीडी पढ़ रहा है और अच्छा पोएम बोल रहा है तो बच्चा इज लिटरस। लिटरस की डेफिनेशन बहुत अलग है। आपका बच्चा खुद का टिफिन खुद खा रहा है, हैंड वॉश कर रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, प्रेयर में जा रहा है, दिस इज वन ऑफ द रोल ऑफ द इंक्लूजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हम ये चीजों को डिनाई करते हैं और हम देखते हैं कि मेरे बच्चे ने एबीसीडी कितना पढ़ी, पोएम कितना आ रहा है, इंग्लिश कितना पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स कितना आ रहा है। हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम भी कहीं तो भी गलत हो सकता है, जरूर होना चाहिए, लेकिन पैरामीटर को भी इवैल्यूएट करते टाइम बैलेंस होना चाहिए कि हमारे बच्चों को स्कूलिंग के साथ में अलग चीजें भी मिल रही है जो सोसाइटी ही दे सकती है। शायद ओपन स्कूलिंग या अदर देन टू आप होम बेस में नहीं ले सकते। ये भी आपको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो बहुत से पेरेंट बोलते हैं सर 4th स्टैंडर्ड में गया लेकिन फर्स्ट का नॉलेज नहीं है। मैं बोलता हूँ डेफिनेटली नहीं है होना, यानी मे बी सर्कमस्टेंसेस उस तरह के नहीं है, बच्चे का कोऑप लेवल है, सिचुएशन है, उस तरह का सिचुएशन स्कूल में नहीं हो सकता। लेकिन आपका बच्चा 5 साल से स्कूल में आ रहा है, दिस इज अ गुड, दिस अ पॉजिटिव थिंग कि आपके बच्चों को ये तो पता चल गया सुबह उठ के मुझे स्कूल का ड्रेस पहन के बस में जाना है या फिर मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के देते और मुझे 11 बजे लेने आना है, दिस इज वन ऑफ द गुड साइन। ये भी आपके बच्चों का इंक्लूजन है, ये भी आपके बच्चों का एजुकेशन है। हम ना एक चीज को देखते हुए ना 99% चीजें खोते हैं, ये भी हमें कुछ चीजें समझना पड़ेगा। हमारा बच्चा इंक्लूजन तभी हो पाएगा जब हम 99 चीजों को थिंक सोचते सोचते 1% को रिकवर करेंगे। हम उल्टा करते हैं, 1% को फोकस करते करते 99% को डिफोकस हो जाते हैं। तो शायद मुझे ये चीज एटीट्यूड लेवल पे आपको चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, ये चीजों को आपको समझना है। तो ओपन स्कूलिंग इज अ सेकंड ऑप्शन टू अदर देन टू इंक्लूजन, डिपेंड सिचुएशन, डिपेंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। हाँ, जैसे मैंने बताया कि पीएम केवाईसी जो एक है पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना है, स्किल इंडिया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, स्किल काउंसिल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है। आप ये ना ये चीजों को जितना इजीली आप गूगल पे या जो भी आप एक्सेसिबिलिटी आपको जैसे मोबाइल से होगा जैसे से सर्च कीजिए। देखो जितना आप सर्चिंग मोड में जाएंगे ना उतना शायद आपको कुछ चीजें बहुत से आपके बच्चों के जरूर नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म एंगल से अवेयरनेस आएगा।
बहुत से लोग रेडीमेड चीजों के एटीट्यूड में आ जाते हैं कि कोई चीज मुझे मिलेंगी, कोई प्रोग्राम होगा और तब हम सोचेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। शायद ऐसा रहेगा तो मैं शायद आपके पास ये चीजें नहीं दे पाऊंगा। मैं भी ऑलवेज कुछ चीजें नया है तो मेरे बच्चों को आगे रखता हूँ और सोचता हूँ कि ये बच्चों को कैसा बेनिफिट मिलेगा। मैं ऑलवेज थिंकिंग प्रोसेस में रहता हूँ कि ये चीज कैसी हो रही है, कैसा होना चाहिए गवर्नमेंट। इवन इफ यू माइंड कि मैं लैकुना सोचता हूँ गवर्नमेंट की इसमें क्या क्या है और उसको स्ट्रेंथनिंग में डेवलप करता हूँ गवर्नमेंट को अगेन रिफॉर्म करने के लिए। क्योंकि मैं बीइंग एज अ पेरेंट्स, बीइंग एज अ पॉलिसी मेकर, बीइंग एज अ इम्प्लीमेंटर, आई ऑलवेज फाइंडिंग कि मुझे स्ट्रेंथ क्या है वो तो देखता ही हूँ, लेकिन इसको और फाइंड आउट करके मैं उसको और पॉलिश कैसा कर पाऊंगा, ये चीजों को मैं फोकस करता हूँ। तो आप भी वो एटीट्यूड लेवल पे देखिए कि क्या अच्छा है, ये तो देखिए ही देखिए, अदर देन टू उसमें क्या अच्छा कर सकते ये भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम शायद मुझे लगता है जो मिल रहा है उसमें खुश रहना शुरू करेंगे तो आगे डेवलपमेंट की स्पीड थोड़ा कम हो सकती है। तो ये चीजों को थोड़ा आप समझिएगा। नेशनल करियर सर्विसेज सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड, ये मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अभी हम एजुकेशन पे बोल रहे थे। मैं ऑलवेज इन माय फोकस इन एवरी चाइल्ड, नॉट ओनली एसडी, एवरी चाइल्ड इन ऑल पीडब्ल्यूडी कोरम, इन फोकस इन एजुकेशन। मैं तो सोचता हूँ कि एसडी बच्चा कभी अभी तो हो रहा है, ब्लाइंड हो रहे हैं, सभी हो रहे हैं, सीपी हो गए, अदर देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अदर देन लोकोमोटर तो सभी जगह हो रहे हैं, हियरिंग इंपेयर्ड भी हो रहे हैं। तो वी कैन प्लान देम कि हम हमारे बच्चों को किस तरह यूपीएससी या उस तरह के नेशनल फोरम पे हमारे बच्चों को हाईलाइट करेंगे। आप पेरेंट्स है, आप सोचिए जरूर क्या होगा। शायद वो हम भी बोलते हैं ना, हमारा एक डेस्टिनी थोड़ा ऊपर का रखेंगे तो शायद उसको हम नहीं टच कर पाएंगे, तो शायद उसके नीचे के स्टेप को हम पहुंच सकते हैं। लेकिन एम्बिशंस और होना जरूरी है, और एम्बिशंस होना गलत चीज है। एम्बिशंस रखे लेकिन स्लोली स्लोली अपग्रेड कीजिए। अभी नेशनल गवर्नमेंट करियर सर्विसेज ने भी हमारे बच्चों को जो 4% रिजर्वेशन है उसमें भी आपके बच्चे इस तरह के एजुकेशन लेते हुए गवर्नमेंट सेक्टर में, यूपीएससी है, अदर देन सेक्टर है, आप उसमें भी अपने बच्चों को राइट्स दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, इसमें बच्चे बेनिफिट ले रहे हैं। शायद ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, शायद ये लॉन्ग टर्म है। डेफिनेटली आप में से 100 में से कुछ लोग इसको जरूर, मैं आज ही आपको कर बता सकता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा तो ये ग्रुप में से 2-4 बच्चे इस तरह के एग्जाम को क्रैक करके इसी ग्रुप में बताएंगे, या फिर पता चलेगा अरे ये तो हमारे ग्रुप का बंदा था या उनके बच्चा था। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे इंजीनियर हो रहे हैं, कुछ बच्चे आईटी में है, कुछ बच्चे अलग अलग सेक्टर में जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर बच्चा अलग सेक्टर में अपना ये करेगा। तो आप जरूर सोचिए और उस तरह से प्लान कीजिए। अब इसमें एक अवार्ड्स हैं, ये भी बहुत जरूरी, काम किया तो अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, आपके वो भी आपके अधिकार हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक एम्पावरमेंट के अंदर नेशनल अवार्ड भी डिक्लेयर करती है। आपको मालूम है आपके बच्चे ने कुछ अलग से काम किया होगा तो आप देखते हैं उसके लिए एवरी ईयर दिसंबर में, 3rd of December, कोइंसिडेंटली लास्ट ईयर का ही कोविड के वजह से ऑनलाइन वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अवार्ड सेरेमनी हुआ है। लेकिन उसके पहले एवरी ईयर दिल्ली में हम विज्ञान भवन में या अदर दिन 3 दिसंबर को नेशनल वर्ल्ड डे डिसेबिलिटी डे के अंदर ये अवार्ड सेरेमनी होता है, और उसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस रहते हैं और प्राइम ये राष्ट्रपति जी भी रहते हैं। तो ये वन ऑफ द गुड थिंग कि आपके बच्चे पढ़ेंगे, शायद उसने अच्छे एग्जाम में पास हुआ है, अलग से काम किया है, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एनजीओ बीइंग अप्लाई कर सकते हैं, बीइंग अ पर्सनल बच्चों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बीइंग अ बेस्ट एम्प्लॉय करके भी आप अपने बच्चों को ये अवार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के, इस तरीके के 14 अवार्ड्स घर के पैरामीटर्स है, नेशनल अवार्ड है ये एवरी ईयर्स। इसका एप्लीकेशन प्रोग्राम अक्टूबर में भी लगता है, सितंबर अक्टूबर में पेपर में ऐड आता है, 2 months बिफोर इसका एप्लीकेशन थ्रू सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के थ्रू आपको मांगे जाते हैं। दिस इज टोटल बेस इन पोर्टल बेस। तो शायद आप अपने बच्चों की अच्छी चीजें भी समाज के सामने लाइए। देखो जरूरी नहीं है कि अवार्ड के लिए लाना है, दिस इंस्पिरेशन ऑफ द अदर फैमिली, पेरेंट्स आल्सो एंड सोसाइटी आल्सो। देखो हम भी, मैं भी बीइंग अ पेरेंट्स कभी कोई डांस प्रोग्राम देखता हूँ या नेशनल अवार्ड सेरेमनी देखता हूँ, कोई भी रहे, तो मैं भी देखता हूँ उसके अंदर पीडब्ल्यूडी यानी कोई भी डिसेबिलिटी बच्चा आता है, तो इंस्पिरेशन मेरे लिए भी है बीइंग एज अ प्रोफेशनल। मैं एक नॉर्मल बीइंग या मैं पेरेंट जरूर नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे भी अच्छा लगता है कि देखो ये बच्चा कर सकता है, हमारा बच्चा क्यों नहीं कर सकता है। तो आप ये जरूर मत सोचिए कि अवार्ड्स के लिए करना है, ये सोसाइटी के लिए हमें करना है। ये सोसाइटी भी सेंसिटाइज होती है इस तरह से चीजें देखने से। शायद ये अचीवमेंट का पार्ट जरूर हो सकता है, लेकिन शायद इंस्पिरेशन का उससे मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है।
तो यू कैन प्लान देम टू और बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल लेवल, उसमें अलग अलग 14 पैरामीटर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से कोई भी जो चीजें भी आप कैपेबिलिटी एंगल से आपको लगता है, तो ये चीजों के लिए आप जरूर सोचना चाहिए। अभी जिस तरह बीइंग एनजीओ, डीपीओ या सोसाइटी या ट्रस्ट, जैसे स्निक फाउंडेशन इज वन ऑफ द एनजीओ, में भी मुझे जितना पता है बीइंग एनजीओ ही अभी काम कर रही है। तो ये चीजों का एक क्या होना चाहिए, ये भी बहुत से पेरेंट्स को 5 इयर्स 3 इयर्स के पता नहीं चलता। हम काम करते हैं क्योंकि हम पैशनेटली हम उन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। मैं जितना मैडम को जानता हूँ, फाउंडर ऑफ दिस स्निक फाउंड इज अ वेरी पैशनेट, वेरी, मैं उनको ऑलवेज बोलता हूँ आप ना एक रॉकेट हो, आप एक अलग ये चीज हो कि आप में अंदर मुझे वो अलग चीजें दिखती है कि शायद आप कितने बच्चों का बेनिफिट शायद कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत सीक्रेट होना चाहिए, नॉट ओनली कि नागपुर में हुई इसलिए पूरा अभी चीजें होनी चाहिए। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट यू कैन प्लान, मे बी नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, मे बी रीजन, मे बी इज अ स्टेट लेवल। रीजन क्या होगा ना, क्योंकि जिस तरह मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन जरूर पहुंच सकती है। तो यू कैन प्लान देम। जो चैरिटी कमिश्नर हम कर लिए, रजिस्टर्ड हो गए, लेकिन हमें पता नहीं रहता उसके आगे क्या करना। आपको लगता है कि हमने एनजीओ रजिस्टर्ड कर ली चैरिटी कमिश्नर में, सब रोल खत्म हो गया। नहीं, आपको उसके लिए दर्पण करके एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का, उसके अंदर भी आपको रजिस्टर्ड करना है। उसके अंदर आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलते हैं, आप रिकॉग्नाइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे आ जाते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके एम्स क्या है, उसके अंदर रिकॉग्नाइज होते हैं। तो शायद गवर्नमेंट आपको जब जब कुछ अच्छी चीजें, पॉलिसी या मे बी कुछ अच्छी स्कीम्स है, मे बी अदर देन टू कुछ CSR एक्टिविटी, यू कैन रजिस्टर्ड इन द दर्पण पोर्टल। ये बहुत ही मैग्नेट पार्ट है, या मे बी नॉट अ मैग्नेट बट इंपॉर्टेंट थिंग इज माय लेवल। उसके बाद में हाँ, ये बहुत से पेरेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं है, या SHG ग्रुप रहे, एनजीओ रहे, अदर देन ट्रस्ट या सोसाइटी रहे, हमें पता ही नहीं कि PWD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। देखो, जिस तरह हम कोई दुकान काम करते हैं तो हमें पता रहता है शॉप एक्ट लाइसेंस चाहिए, या कोई अदर देन कोई भी चीजें हम काम करते हैं तो उसके अलग अलग लाइसेंस रहते हैं। आपके माहिती के लिए, जो एनजीओ डिसेबिलिटी फील्ड में काम करती है, कैन रजिस्टर्ड PWD रजिस्ट्रेशन एज पर द RPWD एक्ट सेक्शन चैप्टर 4 के अंदर एक नॉर्म्स है। जब तक कि आप एज अ PWD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन आपके अंदर पास नहीं है बीइंग अ एनजीओ, तो आप डिसेबिलिटी फील्ड में काम करने के लिए बीइंग अ लीगल आप काम नहीं कर सकते। लेकिन बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन, आपका इंटेंशन अच्छा है तो अदर देन, लेकिन कुछ फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस या कुछ क्रिएट हो जाए तो शायद RPWD एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर कुछ चीजें लायबिलिटी ना बने, या बनने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यू कैन रजिस्टर्ड ऑल्सो RPWD एक्ट चैप्टर सेक्शन 4 यानी जो है उसके अंदर। ये होने के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब डेवलप करती है तो उसको सपोर्ट की जरूरत है, फिर CSR रहे, फाइनेंशियल रहे, अदर देन मैन पावर रहे, या अदर देन मॉरली रहे। तो ई दर्पण इज अ वन ऑफ द, ई अनुदान करके एक पोर्टल है, आप उसके ऊपर भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जैसे मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है दर्पण करके, उसके बाद में मैं बता रहा हूँ ई अनुदान, इसके अंदर भी आप रजिस्टर्ड हो जाइए। उसके बाद में नेशनल ट्रस्ट एक्ट में भी आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो शायद मुझे लगता है ये एक, हाँ, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, उसके लिए कुछ उनके नॉर्म्स है, शायद वो आपको 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद फुलफिल हो गए तो आप शायद यू कैन अप्लाई देम एंड यू कैन रजिस्टर देम एंड देन विल फाइनलाइज देम। तो शायद ये प्रोसेस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे 3 साल में 4 साल में कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड होना है। तो एक भी ये चीजें भी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एज अ एनजीओ और सोसाइटी या ट्रस्ट जो भी है, डीपीओ ऑल्सो। तो हाँ, अभी लास्ट वन, आई एम वेरी हैप्पी टू से देम कि ICMR, आपको शायद पता चल गया होगा, ICMR एक देश की बहुत बड़ी संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च के ऊपर काम करते हैं। जितनी पेंडेमिक रिलेटेड एक्टिविटी अभी गवर्नमेंट कर रही है, मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द ICMR गाइडलाइन पे सब फॉलो करते हैं। नॉट ओनली सिंगल डिसीजन विदाउट ICMR गाइडलाइन, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की रहे या ग्राम लेवल से लेके सेंट्रल तक के, कोविड से रिलेटेड गवर्नमेंट की ICMR से रिलेटेड PWD की भी गाइडलाइन क्रिएट हो चुकी है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जब कोविड में लास्ट ईयर मई महीने की बात है, मई जून में आई वर्किंग इन एज अ नोडल ऑफिसर इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन कोविड रिलेटेड डिसेबिलिटी सेक्शन में, तो कुछ मेरे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे पॉजिटिव है। अभी सरकमस्टेंस इस तरह देखें कि उस टाइम, आज थोड़ा ठीक है कि उस टाइम ऐसा था कि
एक मतिमंद बच्चा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ब्लाइंड बच्चा पॉजिटिव आ रहा है तो उसको वार्ड में दूसरा कोई नहीं रख सकते, उसकी मदर उसके साथ नहीं रह सकते, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रह सकते, बच्चे को इंसुलिन देना है, ब्लड देना है, वैक्सीनेशन करना है, जो भी कुछ करना है। आप इमेजिन कीजिए, एक ब्लाइंड आदमी, एक ऑर्थोपेडिक आदमी या हेयरिंग इम्पेयर्ड तो समझ सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेशली हम एएसडी की भी बात कर ले तो विदाउट मदर या पेरेंट्स कैसे रह पाएगा। और उस टाइम तो ऐसा था कि घर में हम किसी को यानी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था कि अरे अनटचेबल चीज थी कि आप इससे दूर रहो, वो रहो। तो दैट टाइम हमने करस्पॉन्डेंट किया आईसीएमआर को कि हमारे ऐसे 5-6 बच्चे आए थे, हमने फिर उसके प्रॉब्लम क्रिएट हुए, उसके लिए उसकी मदर्स उसके साथ होना जरूरी है। तो हमने गवर्नमेंट से करस्पॉन्डेंट करते करते 72 पेजेस का एक अच्छे से कोविड-19 का सेपरेट पर्सन विद डिसेबिलिटी का गाइडलाइन भी क्रिएट हो चुका है। इट्स अ वेरी हैप्पी टू ऑल दोस थिंग कि ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए इस तरह का गाइडलाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा को एडमिट होता है कोविड वार्ड में, तो दैट टाइम उसके पास व्हीलचेयर है तो उसको सेंसिटाइज करना चाहिए, उसका बेड अलग होना चाहिए, उसके लिए एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, कमोड होना चाहिए, उसको उस तरह के वार्डन को, डॉक्टर्स को ये पता होना चाहिए उसको इंसुलिन या जो भी कुछ चीजें, ब्लड सैंपल लेना है तो किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, या उसके अलग से फूड या मे भी उसकी टेस्ट अलग रहती है, उसको लाइट पसंद नहीं, उसको कलर पसंद नहीं, जो भी हमारे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो शायद उनको अवेयर नहीं रहती। फिर उसके लिए स्पेशल गाइडलाइन होना जरूरी था, शायद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट की, उसके लिए काफी लोगों ने मेहनत भी किया और वो शायद आप तक आपको बताना मुझे जरूरी समझाओ। अभी इसके बाद में यहाँ तक मैं आपको जितना हो सके मैं इतना ही ऑलवेज कहता हूँ कि आप सुरक्षित रहिएगा, ऑलवेज हैप्पी रहिएगा। मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि हर्डल्स तो ऑलवेज है लाइफ में और ये कभी खत्म नहीं होंगे। और मैं ऑलवेज आप पेरेंट्स लोगों से इंस्पिरेशन लेता हूँ कि मैं घर में भी आई टॉक टू माय वाइफ टू कि यार कितना है, मैं रोज 10 लोगों से मिलता हूँ तो मैं घर में बताता हूँ अरे ये कुछ चीजें नहीं है, शायद हर्डल्स तो आप फेस कर रहे हैं, शायद आप कितना चीजों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। स्पेशली मैं मदर्स को हैट्स ऑफ करता हूँ ऑलवेज कि आप कोई चीजों को इतना अच्छी तरह से लेते हैं और पॉजिटिवली ऑलवेज कर कुछ करना है और कल और नया सूरज निकलेगा और कुछ अच्छा होगा। ये एक सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो शायद इससे मुझे लगता है आप खुश रहते हैं, तो आपसे इंस्पिरेशन मैं लेता हूँ। यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, जो आपकी पहली स्लाइड थी जो हमने कोविड के टाइम पे जो आपने ये बताया कि दिस इज कमेंडेबल जॉब यू हैव डन, बिकॉज आई हैव पर्सनली through this situation with COVID positive with my both kids. So ओह yes, so I mean I was not knowing this thing, but abhi pata chala. I'm really thankful. I mean, this is like amazing to know all these things. Can we take a few questions from the chat box, sir? डेफिनेटली, यू कैन प्लीज से देम टू योर साइड। Yes, I'll just see some rational questions maybe. Or if anybody has, okay. I'll take one ADHD question, like 13-year-old and has mild ADHD. What opportunities in education I can expect, because he is smart enough and very active, very understanding, but he find study is difficult, so he wants to study. Because सब लोग ASD और बाकी के बारे में बात करते हैं, ADHD में कुछ है सर हमारे लिए? डेफिनेटली आप मैं ऑलवेज आई स्पीक देम टू पेरेंट्स आल्सो कि आप यू कैन नॉट ओनली फोकस टू एजुकेशन, को करिकुलम एक्टिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। other time to ASD child is a good swimmer also, you can create them, you can share the one link also in group also. So I'll definitely parents ki not only focus to education, education is a one part in your life, please if you don't mind कि उसको centralize मत कीजिए, स्पेशली ASD बच्चों के बारे में, स्पेशली डिसेबिलिटी बच्चों के बारे में, क्योंकि स्मॉल थिंग्स कि आप उसको अदर देन टू स्विमिंग है, को करिकुलम है, अदर देन टू songs and music and other thing, to find the skill of your child. देखो आपके बच्चों को, आपके बच्चों के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, you can find best. मैं नहीं बता सकता हूँ कि आपके बच्चे के अंदर क्या स्ट्रेंथ है। मदर ऑल्सो फाइंडिंग एवरीथिंग, या पेरेंट्स ऑल्सो, या सोसाइटी ऑल्सो, अरे ये बच्चा ड्राइंग अच्छा करता है, माई चाइल्ड इज अ वेरी गुड स्विमर ऑल्सो,
तो उसको स्ट्रेंथ बनाइए ना, नॉट ओनली एजुकेशन। हाँ, डेफिनेटली एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट नॉट अ मैग्नेट कि उसको इतना फोकस कीजिए कि शायद हमारे बच्चे के स्ट्रेंथ के हम वो डिफोकस हो जाए और एजुकेशन नहीं है इसलिए उसको डिमोरलाइज किया जाए। तो डिपेंड, अब एजुकेशन ना डिपेंड करता है आपके सरकमस्टेंसेस के ऊपर, आप कहाँ पे है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, सोसाइटी क्या है, डिपेंड आपके घर का सपोर्ट क्या है, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपको किस तरह डील करता है, या गवर्नमेंट रिलेटेड चीजों को कितना समझता है। तो जरूरी नहीं कि हम वो चीजों को नहीं मिल रहा है तो उसको हम फ्रस्ट्रेशन एंगल से या निगेटिव एंगल से देखें। शायद हमारे बच्चे के अंदर बहुत सी स्ट्रेंथ है। मैं ऑलवेज कहा ना कि आपके बच्चे के अंदर एक दिन बैठिए जरूर, मदर एंड पेरेंट्स यू कैन सिट देम टुगेदर एंड फाइंड आउट। डू मैं जैसे बताता हूँ कि आप हस्बैंड एंड वाइफ बैठिए और हमारे बच्चे के अंदर 10 नीचे क्या गलत है ये सोचिए, शायद आप 2 मिनट में लिख देंगे। और हमारे बच्चों के अंदर पॉजिटिव क्या है लिखने बताएंगे तो शायद आपको 2 दिन लगेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे चलो कल देखते हैं सुबह उठता है क्या, चाय पीता है क्या। तो देयर नॉट इन कि आप बच्चों के स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कीजिए। एजुकेशन इज नॉट अ, मैंने मैं ऑलवेज कहता हूँ ये कोई ये नहीं है, जरूर है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट मत दीजिए। और हमारे स्पेशली एसडी बच्चे के अंदर तो कुछ चीजें इतनी इंटेलेक्चुअली रहती है ना, आपने गलती से उसके अंदर कोई हॉबी फाइंड आउट कर ली और शायद उसको अपॉर्चुनिटी देते गए, यानी एक्सपोजर देते रहे। मैं अपॉर्चुनिटी मींस आप बेस्ट अब एक्सपोजर दीजिए। मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि जरूरी नहीं कि वो स्विमिंग में जाएगा। बहुत पेरेंट्स आते बोलते सर कल चेस लगा, आज फुटबॉल बोलता है, कल स्विमिंग बोलता है, कभी बोलता है बैडमिंटन खेलना है। अरे बोलता हूँ ये तो किसने नहीं किया, मैंने भी किया मेरे लाइफ में। मैं कभी एक जगह नहीं था, मेरे को पता है, मैं भी कभी फुटबॉल खेला हूँ, मैं बास्केटबॉल खेला हूँ, जिम्नास्टिक खेला हूँ। देन आफ्टर आई फोकस इन ओनली स्विमिंग आफ्टर 3-5 years। शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मेरे पेरेंट्स ने दी नहीं रहती तो शायद मैं नहीं आगे बढ़ता था। तो ये तो हमारे बच्चों के बारे में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंपेरेटिव नॉर्मल चाइल्ड ज्यादा होना चाहिए। तो दैट Yes. टाइम योर पेशेंस एंड योर आपका फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजों को आगे बढ़ाते हुए। Yes, I'll take the next question, sir, from Suma Bhaskar. Is disability pension available only for BPL category? Not no, it is a criteria BPL. These are all are the open circular. This pension is, देखो जो गवर्नमेंट सेक्टर में है एवरी जो 9 people are the working in government, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली एंड स्पेशली इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट। आई जितना मुझे पता है तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, इनकम या कोई बीपीएल या जेंडर बेस या मे बी कास्ट बेस ऑल्सो। दिस पेंशन इज पेंशन। जो आप एम्प्लॉय है तो यू कैन अचीव ऑल दोस्त, आप अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, सिबलिंग को दे सकते हैं। प्रियंका ने पूछा सर व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप, डज इट कंटेन्स ओटी एक्सपेंसेस, प्लीज इलैबोरेट। आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट वो जो सम पॉलिसीज व्हेन शी आस्क्ड क्वेश्चन। And the scholarship is a only supportive base of the education, not a rehab base. It's not a supporting angle of the medical angle. जैसे आप देखो, आपको जो भी 1000 2000 या जो भी एक्सपाइटेड अमाउंट मिलेगा, फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन, आई स्पीक देम टू 6 lakhs rupees also in scholarship, but is a you can appear in engineering college, so you can need also laptop also, maybe software also, maybe is other than to other devices also required, maybe is a books, maybe is a hostel related fees also। नॉट ओनली कि आपको उसके अंदर ओटी एंड अदर देन ओटी के लिए आपको मैंने बताया निरामय योजना इज वन ऑफ द गुड थिंग, आप ले सकते हैं। हाँ, जो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है उसको आप किस तरह आपके लेवल पे रिसोर्सेज के थ्रू जनरेट करके ले रहे हैं तो वो आपका इंडिविजुअल लेवल है। ऐसा पैसा आपको जहां यूटिलाइज करना करिए। Okay, I'll just find out some relevant questions. So, I mean, not related, but how to handle bullying, because this is the predominant issue when a child enters inclusion. I mean, anything we can do for this? प्लीज पार्डन, मैं समझा नहीं प्लीज। How to handle bullying, because this is predominant issue when child enter inclusion. ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। Yeah. डेफिनेटली मैं ऑलवेज से देम कि पेरेंट्स इज द फर्स्ट टाइम इज गो टू द स्कूल ना। मैं भी मेरे बच्चों को स्कूल में डाला होता, आई विल ऑलवेज इज अलर्ट देम कि फर्स्ट डे आप भी देखो, नॉर्मल बच्चों को भी आप डालते तो आप भी मदर एज कितना अलर्ट रहते हैं कि बच्चा टिफिन कैसे खा रहा होगा, पोटी कर रहा होगा, क्या होगा, चिस्सू कौन करेगा, कोई मारेगा तो, गिर गया तो। ये तो हर बच्चे में है ना, तो हमारे बच्चे में अंदर भी होता है। देखो कुछ चीजें डिपेंड, मैं ऑलवेज पेरेंट्स को आई विल से देम कि आप स्कूल के टीचर को मत समझे कि उनमें क्या गलतियां है, शायद वो अवेयर नहीं है इस तरह के बच्चों को डील करने में।
शायद उनको वो ट्रेनिंग नहीं है ये बच्चों को डील करने का, किस तरह से आगे बच्चों को लेके जाए। ये लैकुना है फील्ड ऑफ एजुकेशन के। शायद गवर्नमेंट ना, एनसीईआरटी इज वन ऑफ द क्रिएटेड मॉड्यूल नेक्स्ट 1 years, the whole country, every schooling teacher are the training to this level कि इस तरह से बच्चे स्कूल में आएंगे तो शायद किस तरह से उनसे डील करना है। तो कैन इमेजिन कि ये चीजें हम बोल रहे हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट और समझने के लिए डिपेंड ऑफ सिचुएशन कि वो उस तरह की टीचर का भी एक्सेप्टेंस लेवल कितना, उसका सोशल एंगल कितना है, डिपेंड करता है वो सब चीजों के ऊपर। अब डेफिनेटली डोमिनेटिंग होगा, कुछ चीजें गलत टॉक होगी, कुछ चीजें फ्रस्ट्रेटिंग होगी। देखो, आपने बच्चे को एक्सेप्ट किया है ना, शायद मुझे लगता है आपने ये चीज समझ लेना चाहिए कि ये आपके जर्नी का एक पार्ट है। हम इस तरह के बहुत से हर्डल्स आएंगे। आप जब ये माइंडसेट बना लेते हैं ना कि मुझे कोई भी स्मूथली चीजें नहीं मिलेगी, तो शायद मुझे लगता है बेसिक हर्डल्स आएंगे तो आपको इजीली एक्सेस मिल जाता है। तो आप वो चीजों को कभी फोकस मत कीजिए, आप समझ लीजिए कुछ चीजें होना ही होना है। कभी आपके पर्सनल, देखो मैं भी कई काम करता हूँ तो मुझे भी कोई पर्सनल लेवल पे कई चीजें होती है, तो मैं फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे बच्चे में क्या अच्छा है, यू कैन फाइंड आउट देम। ये तो चलेगा, ये आप यहाँ पे नहीं, स्कूलिंग में नहीं, आगे भी चलेगा। आफ्टर द मैरिड, आफ्टर द एवरीथिंग, आपको ये लाइफ में का एक पार्ट समझ के आगे जाना पड़ेगा। Okay, sir, we are through with all the questions, relevant questions, and some parents are asking about disability certificate. You can go online. I mean, I will post the link in the groups जहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन आप जनरल लोकल बॉडी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड, दिस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ डिपेंड ऑन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे I'll spoke them कि before 2 years, before I started personally in focus in issue the disability certificate ASD related 2015 गाइडलाइन। आप सोच सकते हैं 5 साल से गाइडलाइन आ चुकी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था कि ये आई है, कैसे काम करना है। लेकिन किसी को तो कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, शायद उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में, हमें भी कुछ चीजें आगे फेस करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पता था कि ये चीजों को हडल जरूर आएंगे, और ये चीजें मुझे पता था एक बार ये वो एक्सेस को मैं हडल्स को क्रिएट करूंगा तो शायद ये एग्जाम्पल क्रिएट होगा होल कंट्री के लिए। तो वो हमने अचीव किया है। तो आप जरूर, मैं कुछ लिंक आपको शेयर करूंगा थ्रू द मैडम। मैडम प्लीज, थ्रू आप इसको मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा कि हाउ टू अप्लाई, गो टू द वेबसाइट, किस तरह करना है। उसके मैंने ट्री मेथड में भी समझा दिया, जो आपको शायद एकदम इजीली आपको समझ में आएगा। तो आप जरूर कीजिए। नहीं आता है तो ये देखिए, लोकल बॉडी को थोड़ा सेंसिटाइज कीजिए, उसको समझाइए। और नहीं होता है तो थोड़ा सा फिर आपको सभी चीजें यूटिलाइज करना ग्रुप की है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपका रिसोर्सेज, आपको उसके लिए कुछ हेल्प माय साइड या मे बी सिक फाउंडेशन, तो डेफिनेटली आई विल सपोर्ट देम। सर, और एक क्वेश्चन है, कैन वी अप्लाई फॉर बेनिफिट्स इफ वी आर आउटसाइड इंडिया? बिकॉज हमारे पास काफी बाहर से पेरेंट्स हैं जो इंडिया में नहीं है, तो कैन दे अप्लाई फॉर दीज बेनिफिट्स? Currently, I am not aware about these questions, but definitely I'll next 3-4 years. Please give me time. I'll search them to every depend on policy related to schemes also. कि NRI people are other than to country people or the apply them or not. Currently, I'm not aware about this. Frankly speaking, but definitely 3-4 days I will find out thing कि कौन सी scheme किसके लिए है, तो I'll share them to you. Okay, sir, no problem. But Okay. one Yes. scheme also, NHFDC, National Handicap Finance and Development Corporation, this is overseas scholarship scheme student for the disability, National Overseas Scholarship Scheme. You can apply them. This one scheme, just current, I be aware about this National Overseas Scholarship. So maybe is applied to other NRI people and other than to country जो भी बाहर है outside of India. So definitely you can. Okay, okay, sir. Okay. I think we will conclude this session now. I'm really thankful to you, sir. मतलब आपने जो information दी, I think हमें किसी को भी इतनी ज़्यादा information नहीं पता थी, and certainly we got very much I mean aligned towards the goal. काफी कुछ चीजें पता चली कि what we have to do next, where to apply, what to do. So thank you so much for doing this, sir. Let's see more information in on our next webinar with Abhijit Raut, sir. On okay, sir. Thank you so much. Thank you so much, parents, for joining, and thank you so much, Abhijit Raut, sir.
And thank you so much SICK Foundation and all people member of committee and parents also कि आपने मुझे समझ लिया और आपने सीरियसली वो चीजों को, और काफी अच्छे आपके रिप्लाई भी है। डेफिनेटली जो मुझे आपने मैसेज किए हैं मैं जरूर सबके आपको आंसर जरूर करूंगा। कुछ चीजें नहीं भी हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट 3-4 days आई डेफिनेटली आंसरिंग देम ऑल दोस आंसर्स क्वेश्चंस प्लीज। ठीक है, थैंक Yes, यू sir. वंस अगेन। हैप्पी अगेंस्ट, आप अच्छे रहिए, आप बच्चों को आगे बढ़ाइए क्योंकि ये भी बच्चे हमारे देश का हिस्सा है, ये कंट्री के पार्ट है। ये बच्चे बढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेगा। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you. Bye bye and good night, everyone.